नॉर्मली सीए सिस्टम रन्स ऑन कोचिंग्स कि आपको कोई गाइड चाहिए. सेल्फ स्टडी बहुत लोग करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर गाइडेड थ्रू टीचर्स. चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑब्वियसली इज अ वेरी निश प्रोफेशन एंड आई एम श्योर कि उसको उसके काफ़ी आसपास बहुत सारे दायरे या जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखाएं भी होंगी. ऐसे भी लोग देखे हैं जो 52%, 58, 59, 60 वाले भी दे आर सीएज इन फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज दे नो हाउ टू डू दैट एफर्ट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. अहंकार बोल लो, ईगो बोल लो कि आ जाता है कि यार अब मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता था, तो मेरे से नहीं हो रहा, मैं इस बार तो करके दिखाऊंगा. तो वो जो करके दिखाने की जो मैं थी कि मेरी वो साइड कर दी कि ठीक है यार अब हम्बल रहते हैं, मेहनत करेंगे, जम के करेंगे, रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा. बीच में जॉब भी शुरू कर दी थी, पैसा कमाना भी शुरू कर दिया था, शादी भी हो गई थी. अब मोटिवेशन क्या है? मतलब वहाँ ये क्लियर था कि भाई सीए करेंगे, मेहनत करेंगे तो सीए तो निकाल लेंगे. वहाँ मेहनत करेंगे, ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन क्रिकेट. कंट्री नीड्स मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मोर प्रोफेशनल, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड business owners are increasing day by day. 0.029%. That's it. Out of 140 crore Indians, that's the percentage of people who go on and become fully qualified chartered accountants. That's a staggering number. It's a journey that is absolutely brutal, completely relentless, and fairly lonely as well. I have ever been curious about this profession and the people who do this job. I have always wanted to have a conversation with someone qualified to actually be able to talk about that entire journey. And I am lucky and I'm fortunate that I got this opportunity today to sit across someone that I have known, who I have admired, simply because of the fact that one, well, he's part of an absolutely rare breed of people. That as I said, that number in itself is self-explanatory. But more importantly, because by dint of having done or accomplished what he has earned the certificate of trust of not just me, but every single person who has ever taken the service or worked with a chartered accountant. And trust me, I think all of us need one in our lives. This is a story of grit, of passion, of a lot of lonely nights, a lot of brutal sacrifices. It's what I call the ledger of dreams. This is a verse with a friend and an immensely valued colleague, co-professional, Siddharth Gambhir, chartered accountant. I'm here to talk to him today about the journey that he's had in his life across a lot of different areas, and how he's come this far. Let's dive right in. Let's enjoy this conversation. See you on the other side. Hi, Siddharth. Thank you so much for coming here. You are part of. I just talked about the same in your intro as well. You are part of a very exclusive club in India, right? I myself wasn't aware of all these statistics, but to actually be in that breed, that's a very separate breed, right? That of chartered accountants in India. What's it like? What is it like being a chartered accountant? I think let's just first start with I'll that. explain you. First, you said we are in an exclusive club. We are, but I think chartered accountants have that ego. Looking from outside, if somebody looks a chartered accountant from outside, देखो CA साहब हैं, CA करी है तो बहुत पढ़ाई करी होगी. No doubt we study hard. No doubt it is one of the toughest exam in India. But portraying us as exclusive and super special, I take a side from that thing. Firstly, because everybody, maybe you are an MBA, right? So you also have worked hard in your journey. Entrepreneur works hard in their journey. Everybody has their own journey. Yes, chartered accountants are hardworking, studious as they look from outside, but we do a lot of fun as well. नहीं, हाँ, मतलब fun तो I'm sure you do, but what I'm saying is, there is a certain value attached to being a chartered accountant in India, right? I think number one, because of what you do after also. एक तो है कि जो आप पढ़ाई करते हो,
जो वो पूरी की पूरी जर्नी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट आई थिंक उसके बाद की जो लाइफ है ना सिद्धार्थ, आई थिंक वहाँ पे भी आप एक ऐसी चीज़ के साथ डील करते हो विच इज़ अबाउट मनी. You are managing money for a lot of people, and something which I feel is possibly you are possibly a someone who is considered closer than जितना मैं अपनी बीवी से नहीं बात कर सकता, मतलब उतनी बातें बिल्कुल, आपको पता होती है. बिल्कुल, Right? बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट. Correct. Now the reason why I asked that question is so, and I'm very curious to know 4,07,629 4,07,629 CAs as of the 28th of February 2025. True. In a country of 140 crore people, right? What comes after? I think, what's life like as a chartered accountant? Now, let's talk about the now. We will, I think, step back in time a little bit later. कई बार हमें लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली तो पढ़ाई ख़त्म, बट it's totally opposite. You have to, especially being in practice, if somebody is in job, your role might be defined that you have to do this protocols, you have to follow this thing. Suppose somebody is in finance, in internal audit, then the role is defined. Me being in practice, normally you have to keep update with the laws. GST आया, GST के बाद तुरंत इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं. GST जब से आया उसके बाद अब जो GST की पोजीशन है 2017 के बाद से 2025 वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर आर हेल लॉट ऑफ चेंजेस. सो वी हैव टू स्टडी रेगुलरली. अगर मैं 7 दिन में से 5 दिन काम कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, 2 days हॉलीडे टाइम, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ, देन आई एम स्पेंडिंग 2 hours 3 hours डेली फॉर स्टडी थ्रू डिफरेंट मीन्स, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू यूट्यूब स्टोरीज. नॉट कि बुक ही खोल के पढ़ना है, बट आई हैव टू बी अपडेट. बिकॉज लेटेस्ट एग्जांपल, जीएसटी में अभी मोदी जी ने अनाउंस किया 22 तारीख के बाद से जीएसटी रेट चेंज हो रहे हैं. वी आर ऑक्यूपाइड इन ITR सीजन अप टू 15 सितंबर, 1 day अहेड 16 तक का डेट बढ़ाई. अब रेट चेंज हो रहे हैं, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, विच इज़ अ बोनांजा फॉर द इंडस्ट्री. अगर बहुत लोग देखें तो लेमन लैंग्वेज में टेक्निकली क्या है, दैट इज़ अ नॉट राइट प्लेटफॉर्म टू से, बट जो क्लाइंट्स हैं या जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि यार मोदी जी ने अनाउंस कर दिया जीएसटी के रेट कम हो रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे काम पे क्या इम्पैक्ट करेगा. अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सी अ सिचुएशन, दैट पर्सन इज बिजी इन द ऑडिट सीजन, जीएसटी डेट्स आर एवरी मंथ 11 and 20th, ऑडिट सीजन इज कमिंग, ITR इज रनिंग. यू डोंट हैव टाइम टू एनालाइज दैट थिंग. तो दैट स्पीड we have to cater upon after becoming a chartered accountant, that we have to keep update every day. मतलब it's like how the life of a doctor is, right? Maybe एक और प्रोफेशन जो शायद मेरे जहन में आता है जो equally specialized है, right? is that of somebody who studies medicine, because वो पढ़ाई कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होती. True. आप डॉक्टर बनते हो, आपको लगता है कि अच्छा ठीक है अब मैं कुछ बन गया हूँ, बट उसके बाद भी आपको, because medical science is also kind of making progress very rapidly. I think this seems to me to be one Closest more to. such profession. But सिद्धार्थ, उसमें ना एक और चीज़ जो थोड़ा सा क्यूरियसली दिमाग में आता है. से फॉर एग्जाम्पल जब मैं भी बड़ा हो रहा था, और अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, और आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स, हु आर इंजीनियर्स. MBAs तो चलो ठीक है भर भर के आजकल अवेलेबल हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू एवरीवन हु हैज डन एन MBA. आई हैव डन वन माई सेल्फ. बट जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो माँ बाप भी अपने बच्चों से जब बात करते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम इंजीनियर बनोगे या तुम डॉक्टर बनोगे. ये कोई, मैंने बहुत कम लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मेरा बच्चा तो CA बनेगा. क्यों? मतलब ये जो वो नंबर बड़ा छोटा है. डॉक्टर्स भी मेरे ख्याल से काफ़ी हैं इंडिया में, बट नॉर्मली ना आई थिंक ये बहुत रोज़मर्रा के हमारे जो घरों के कॉन्वर्सेशंस होते हैं माँ बाप और अपने जो अपने बच्चों से कर रहे होते हैं अबाउट देयर करियर, कि आप ज़िंदगी में क्या बनोगे, व्हाट्स योर एस्पिरेशन. आई डू नॉट नो, मतलब मेरे एटलीस्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में आई डू नॉट नो एनीबडी जहाँ पे दे सेड कि अच्छा नहीं मुझे तो बड़े होकर CA बनना है. उसका सर आई कैन आंसर इन 2 parts. पहला, एक कहावत है कि राजा का बेटा राजा बनेगा. तो नॉर्मली CAs रन्स इन ब्लड लाइन, जो मैंने देखा है. ग्रैंडफादर CA हैं, फादर CA हैं, तो दे आर पुशिंग देयर सन और डॉटर हुएवर माइट बी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. अब नंबर वो बहुत छोटा है, 4 लाख की आपने ऑन एवरेज बात करी, तो बहुत सारे तो है नहीं CAs इंडिया में एज ऑन डेट भी. अब आप
सीए प्रोफेशन जब से शुरू हुआ और आज जहाँ पे हम खड़े हैं वो ब्लड लाइन चल रही है आज भी। तो जो जिसने देखा है अपने फादर को या ग्रैंडफादर को, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट है। हो सकता है ही और शी माइट चूज अ डिफरेंट प्रोफेशन एज पर देयर विल एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो अलाउ, बट उसने देखा है कि सीए कैसे होती है। बाहर वालों ने सीए को हमेशा एज अ टफेस्ट कोर्स देखा है। अगर एक ऐसे माँ बाप हैं जिनका सीए से कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने सीए को एज अ टफेस्ट प्रोफेशन देखा है इंडिया में कि सीए की पढ़ाई बहुत होती है। तो उसके लिए फोर्स करना, क्योंकि एक तो उन्होंने खुद नहीं करी, तो देयर माइट बी अ रीज़न कि वो अपने बच्चों को कैसे बोल पाएँ। वन रीज़न, सबकॉन्शियस रीज़न माइट बी। दूसरा कि इमेज ऐसी है सीए की सोसाइटी में कि बहुत टफ पढ़ाई है, तो हर कोई उसमें घुसता नहीं है। I being a first generation CA in my family, my father is not a CA, my grandfather was not a CA. तो बट कुछ आसपास के दोस्त या कुछ बड़े भाई, कजन्स, रिलेटिव वो हैं, तो पता था कि कैसे काम करना है। और अगर घुस रहे हैं तो घुस तो गए कि ठीक है, 12th में किसी ने पूछा क्या करोगे, सीए करेंगे, क्योंकि दो प्रोफेशन दिखते हैं कॉमर्स वालों को, या तो एमबीए करेगा या अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन करेगा, या वो अगर उसको कोई अच्छी डिग्री चाहिए तो सीए बनेगा। तो तब तो बोल दिया। उसके बाद इंटर का एग्ज़ाम हुआ, मतलब एंट्रेंस का एक एग्ज़ाम होता है, सीपीटी बोलते थे हमारे टाइम में। वो लकीली एक बार में क्लियर हो गया, तो सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग हो गई यार, एक बार में क्लियर हो गया। थोड़ा सा पढ़ के तो जितना बोल रहे हैं इतना टफ है कि नहीं, आई डोंट नो। बट जैसे जैसे जर्नी बड़ी आगे, आप पूछोगे आगे तो असली कहावत सामने आएगी, रियलिटी सामने आई कि कोई तो रीजन होगा, एंड आई एम वेरी क्यूरियस एंड आई एम श्योर दैट आई मीन एवरीवन वाचिंग वुड आल्सो बी वेरी क्यूरियस, बट टेल मी दिस, आई थिंक बिफोर वी move on with your journey, Siddharth, I think for a lot of people who, let's just say कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, in a nutshell, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट सर इस देश की और आपके परिवार की बैकबोन है, जो आपको दिखती नहीं है। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, उसका सदुपयोग और उसका दुरुपयोग इन मोस्ट केसेस चार्टर्ड अकाउंटेंट की मर्जी के बिना नहीं होता। आई एम सेइंग अ बिटर ट्रूथ। मिसमैनेजमेंट, सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन योर डे टू डे अफेयर्स, अ कंपनी इज रनिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ साल में एक बार ऑडिट करता है, देन इट माइट बी अ सिनेरियो कि उससे कुछ मिस हैपनिंग्स मिस हो जाएं ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, ड्यू टू इनकन्सिस्टेंसीज इन डॉक्यूमेंट्स, ड्यू टू मैनी अदर रीजंस। But if a chartered accountant knows you and you are transparent to the chartered accountant, आपके पैसे का यूज़ चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। एंड पैसे के बिना आज की डेट में कुछ भी नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली। इकोनॉमी रन्स ऑन मनी, एवरीथिंग रन्स ऑन द फाइनेंस थिंग। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बिजनेस शुरू होने से या आपके परिवार में पैसा जनरेट होने से, मैं ऐसा बोलूँ, और उसके बढ़ने तक, वो पूरे जर्नी का हिस्सा है आपके परिवार लेवल पे। बात करते हैं देश के लेवल की। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। पीयूष गोयल जी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, अब भी आई थिंक कैबिनेट में वो हैं, ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे उद्योगपति, आदित्य बिरला ग्रुप के आदित्य बिरला, कुमार मंगलम बिरला himself is a chartered accountant. द मोस्ट फेवरेट स्टॉक मार्केट ब्रोकर राकेश झुंझुनवाला, नॉट विद अस एनी मोर, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको, उनके काम को, जो भी उन्होंने किया, ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे ऐसे टाइकून्स हैं जो हम नहीं जानते बट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इस देश में होना, इस मार्केट में होना इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ नीड, अगर आप उस पर सही पे भरोसा कर सकते हो। क्योंकि जो उसने पढ़ाई करी है, जो वो जानता है, जो वो समझता है, वो सिर्फ 4 लाख लोग, या आपने बोला, समझते हैं। और वो लोग कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद कर रहे हैं, वो जर्नी समझते हैं, उनके पास टैग नहीं है सीए का ड्यू टू एनी रीज़न, बट वो जर्नी से गुजर चुके हैं, तो वो पेन को समझते हैं। तो जो आपका सवाल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, वो एक लाइन में, जहाँ से पैसा आपके पास आ रहा है, जहाँ जा रहा है, उसका मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत सारे काम और भी करता है, मैनेजमेंट के काम करता है, ऑडिट्स के काम करता है, किसी सोसाइटी को मैनेज करना है, किसी मिनिस्ट्री को मैनेज करना है, वहाँ उसका रोल इन्वॉल्व है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक इंडस्ट्री को देख रहा है। मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर हूँ सपोज करो, तो मैं देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो,
तो आई हैव नॉलेज अबाउट योर इंडस्ट्री, सपोज आई एम एन ऑडिटर ऑफ अ वेरी बिग कंपनी, आई हैव नॉलेज अबाउट दैट इंडस्ट्री, वहाँ मैं किन लोगों से मिल रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है मुझे पता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से और डॉक्टर से कोई कोई भी चीज़ छुपाता नहीं है, राइट। तो इन आउट मेरे को पता है कि सामने वाला एक्चुअल में क्या है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस बाकी सब कुछ पता होता है। वो कितना बताएगा नहीं बताएगा अपने रिपोर्ट के जरिए, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट ही नोज एवरीथिंग। तो सिद्धार्थ, इन अ वे, इन अ स्लाइटली मोर लाइट मैनर, मतलब एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे कि मैं आज किसी की पोल खोलूंगा तब तो यार मतलब बहुत सारे लोगों की तो खोल सकता है सर, खोल वाट लग सकता सकती है है, बिल्कुल। सोफेस्टिकली खोल सकता है, पब्लिकली बोलना अलाउड नहीं नहीं नहीं, है। आई नो, आई एम श्योर, आई हाँ मीन हाँ जो आपका प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑब्वियसली इज अ वेरी निश प्रोफेशन, एंड आई एम श्योर कि उसको उसके काफ़ी आसपास बहुत सारे दायरे या जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखाएं भी होंगी, सो दैट यू आर एबल टू प्रोटेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली एज यू सेड जो भी इंफॉर्मेशन शायद मेरी वाइफ को नहीं पता होगा, बट वो एटलीस्ट मेरी कंपनी का हो चाहे जो भी हो, वो मेरे सीए को पता होगा। मोदी जी ने कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन की वैल्यू मेरे साइन की वैल्यू से ज़्यादा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहीं कहा था, सीए इवेंट में आई थिंक कहा था। तो अगर देश का प्राइम मिनिस्टर वो भी ऐसा नेता अगर कुछ बोल रहा है तो इट होल्ड्स वैल्यू। True, true, absolutely. I think that's a very interesting start to our conversation, Siddharth. And अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं. You come from Ghaziabad, राइट। right? And I'm sure कि आज से 10-15 साल, 20 साल पहले या 25 साल पहले जब आपने पढ़ाई शुरू करी होगी, या as you said, you are, आपके फैमिली में you are a first generation CA. मेरी भी धारणा कुछ ऐसी ही थी कि जैसे मुझे नंबर वन ऐसा लगता था जब छोटा था, तब ऐसा लगता था कि यार जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो वो सारे किसी बिजनेस फैमिलीज को ही बिलोंग करते होंगे, नंबर वन। या नंबर टू ऐसा लगता था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके फादर या उसके घर में कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। मैं पला बढ़ा काफ़ी, मेरे आसपास बहुत सारा बिजनेस कम्युनिटीज़ के बीच में बड़ा हुआ मैं, जैसे मारवाड़ीज़, गुजरातीज़, पंजाबीज़। तो मुझे ऐसा लगता था, विच ऑब्वियसली टर्न आउट टू बी नॉट ट्रू। बट गोइंग बैक, गाजियाबाद इज़ नॉट अ बिग सिटी। आई एम श्योर कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, आई एम श्योर दैट द अवेयरनेस, द नॉलेज, कुछ भी करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नंबर वन, या तो आपके पास बहुत सारा वो नॉलेज होना चाहिए, या आप कम से कम जिसको कहते हैं ना कि यू हैव आपके पास वो इंफॉर्मेशन का जरिया है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के दिन में क्या है, today it is very easy for anybody and everybody to know a lot of things. Why? Because हर घर में, हर भी बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है जिसमें एक इंटरनेट है जो उसको पूरी दुनिया से जोड़ता है। बट दैट वाज नॉट द केस 25 years बैक, राइट? कैसे शुरू हुई वो जर्नी? Roughly 15 years back, just after my inter exam 12th standard, I decided that let's go for the entrance exam. 2009 I think. क्यों सोचा वो? मतलब क्या इंस्पिरेशन क्या था सिद्धार्थ? इंस्पिरेशन नहीं था सर, मतलब आप आज पूछो क्यों सोचा तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है कि बहुत सारे इंस्पिरेशन थे, मैं हमेशा से सोचता था सीए बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, टू बी वेरी ट्रू। हाँ, सीए में एक लगता था कि इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एज वेल, बिकॉज आई वांटेड टू गिव माय फैमिली A great life, हाँ, great life obviously. in terms of money, though my family's member are well settled in their own thing, but being self responsible, कहीं ना कहीं ये था कि उस प्रोफेशन से आई कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एक ये थोड़ा मोटिवेशन था, अदर देन दैट मेरे को उसका कुछ नहीं पता था कि क्या पढ़ाई होती है, क्योंकि कभी किसी से सुना ही नहीं है, किसी को पढ़ते हुए देखा ही नहीं है ना। तो इंटर में आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे थे? हाँ, ओके। 12th में आई वॉज कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट एंड आई स्कोर्ड गुड। नॉर्थ कैंपस में कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया था लकीली, बट क्योंकि तब सिचुएशन ऐसी थी कि यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉलेज एंड सीए रेगुलर बोथ टुगेदर, या तो आप कॉलेज कर सकते हो या सीए कर सकते हो। दो सीए हमारी उससे ज़्यादा टाइम में हुई, अगर मैं कॉलेज करके करता तो भी मैं उसी टाइम पे करता जो अब टाइम पे करी, दैट इज़ अ डिफरेंट टेक। बट 2009 में गिवन माई फर्स्ट फाउंडेशन लेवल एग्ज़ाम, सीपीटी बोलते थे, एक बार में वो क्लियर हो गया, तो लगा यार ये तो ठीक है, मतलब रेगुलर खेल खेल में बोर्ड्स के बाद छुट्टियां होती हैं, उसमें खेलते थे रोज़ शाम को, एंड साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली, कोचिंग लगा ली थी, और वो क्लियर हो गया। मेरे को लगा यार ठीक है, मतलब नॉट सो दैट टफ जो लोग बोलते हैं। थोड़ा आगे बढ़े, इंटर की बुक्स घर पे आई, तो लगा कि अच्छा इतनी बुक्स तो कभी जीवन में नहीं पढ़ी, तो पढ़ के देखते हैं क्या है।
उसकी भी कोचिंग्स वगैरह, नॉर्मली सीए सिस्टम रन्स ऑन कोचिंग्स, कि आपको कोई गाइड चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत लोग करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर गाइडेड थ्रू टीचर्स। तो पढ़ते गए, इंटर का फेज़ आया, पहले बार दिया इंटर, फेल हो गए, ठीक है जी, दूसरी बार दिया फिर फेल हो गए। तो लगा कि यार क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं, कि पढ़ाई तो मेरा साथ वाला भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, पढ़ाई में तो कमी नहीं है। तो फिर थोड़ा सा समझ, ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ा समझ आया कि जब 100 में से 15 ही पास होंगे तो बेस्ट 15 ही पास होंगे। इज दैट द रेशियो सिद्धार्थ कि 100 में 15 लोग पास कम है, करते हैं? मतलब एवरेज वो इतना ही है, आज भी इतना ही है, एवरेज रेशियो इतना ही रहता है। हालांकि अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट देयर आर 2 अटेम्प्ट्स, मतलब मेरे टाइम पे कि साल में 2 बार आप पेपर दे सकते हो, मई एंड नवंबर। उसमें हमारी कहावत भी थी कि पास हो गए तो ठीक, वरना मई के बाद नवंबर, नवंबर के बाद फिर मई आएगा, तो लगे रहो। तो ठीक है, 2 बार उस पर फेल हुए, थोड़ी और मेहनत करी डिफरेंट तरीके से, तीसरी बार में लकीली बेड़ा पार हो गया। वो था इंटर लेवल टोटल CS हैज 8 + 7 + 4 19 एग्जाम्स, मतलब 4 होते हैं आपके एंट्रेंस पे, 7 होते हैं इंटर में, एंड 8 होते हैं फाइनल में। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया स्ट्रक्चर, बट एट माई पॉइंट जब मैंने करी थी तो दिस वॉज द सिचुएशन। 2011 में, 2009 में शुरू करी CA, 11 में जाके इंटर में गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, तो लगा अब इंटर हो गई है तो फाइनल तो करनी ही करनी है। दैट वॉज डिसाइडेड ऑन द डे आई क्लियर द इंटर। क्योंकि बहुत लोगों को देखा था कोचिंग के जर्नी में कि फाइनल में जाके दे गेट स्टक और छोड़ देते हैं। राइट। आई थिंक आई आल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो सीए इंटर हैं बट सीए नहीं है। सीए नहीं है, तो ये वही कैटेगरी के लोग हैं जो ड्यू टू एनी रीजन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो क्योंकि कुछ फैमिलीज में उनको कमाना होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नीड, एज हो रही होती है। बिकॉज सीए में आप देखोगे कि लोग 60 साल में भी सीए बन रहे हैं। अभी पिछले साल एक अंकल बने थे, अभी इस पिछले अटेम्प्ट में रिजल्ट आया, फादर और सन एक साथ सीए बने हैं। तो दैट इज़ द गैप। तो खैर 2011 में जो जर्नी आप बोले हो कि हो गए पास, तो लगा कि आधे तो हो गए हैं, अब और मेहनत करेंगे। बट सीए में क्या होता है कि इंटर के बाद यू हैव अ 3 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, जहाँ पे आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जाके प्रैक्टिस करनी है, काम सीखना है बेसिकली। यू कॉल इट एन आर्टिकलशिप। तो उसमें पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है कभी कभी, बिकॉज सुबह से शाम आप आर्टिकलशिप करने जा रहे हो एज अ जॉब, और आप कोचिंग्स लगा रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी का टाइम बेसिकली, आप कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो यू नीड टाइम फॉर रिकॉल, तो वो टूट जाता है। तो साथ साथ पढ़ते रहे, फाइनल शुरू हुआ, फाइनल ऐसा शुरू हुआ कि वो चलता ही रहा। अब वो कितना लंबा चला, 2014 से मेरा पहला फाइनल अटेम्प्ट ड्यू था, मई 2014 टू बी प्रिसाइज, एंड आई गॉट द फाइनल डिग्री, फाइनल क्लियरेंस इन सी एग्जाम इन just after my marriage, April 19 में I got married, November 19। तो मई 2014 से लेकर के नवंबर 19 नवंबर तक 19 एवरी ईयर तक 2 टाइम्स, 2 बार होते हैं एग्जाम, एवरी ईयर 2 टाइम्स। नवंबर वाला जो था लास्ट में जब पास हुआ तो एक ग्रुप पहले हो गया था, एक ग्रुप बाद में हुआ था। अब वो बोलते हैं कि शादी के बाद लक आया जीवन में तो हो गया, विच आई ऑल्सो बिलीव कि माइट बी ट्रू, बट एफर्ट खुद का होता है। अब उस बीच में बहुत सारे फेजेस आए, जैसे आपने पूछा कि लो फेज क्या था, बिकॉज मतलब हाँ हर एक, सो आई थिंक नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि 2-3 चीज़ें दिमाग में आती है ना, तो मई 2014 से लेकर के नवंबर 2019 इज मोर देन ऑलमोस्ट, सो अबाउट 5.5 years जब आप फाइनल अटेम्प्ट कर रहे थे। फाइनल के 5.5 स्टार्टेड इन 2009, राइट। 5 और 5 10 हो गए, 10 साल, राइट। तो 10 साल तक पढ़ाई करना सिद्धार्थ, दैट टू फॉर अ प्रोफेशन जहाँ पे द सक्सेस रेट इज सो लो, जहाँ जैसे हम बात कर रहे थे कि 100 में से अगर 15 लोग फिनिश लाइन के पार पहुँचते हैं, राइट, कोई ऐसा टाइम आया व्हेन यू थॉट कि नहीं यार छोड़ो कुछ और करते हैं जीवन में? नहीं, ऐसा टाइम कभी नहीं आया, एंड दैट वाज द ओनली फैक्टर विच मेड मी क्लियर दैट जर्नी। तो मतलब लगे रहे। हाँ, बिकॉज बीच में जॉब भी शुरू कर दी थी, पैसा कमाना भी शुरू कर दिया था, शादी भी हो गई थी, अब मोटिवेशन क्या है?
बट दैट वॉज प्रीसीडेड. जब मैंने बताया आपको, इंटर के बाद दिमाग में ये क्लियर था कि कुछ भी हो जीवन में, नॉट ओनली सीए, कि अगर पकड़ लिया है तो छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, नो मैटर व्हाट. अब उसमें स्ट्रेंथ मिलती चली गई डिफरेंट डिफरेंट मीन्स से, इंटरनली थ्रू आवर गाइड्स, थ्रू आवर गुरुज, जो हमेशा इंटरनली आपको गाइड करते रहते हैं, या थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आपको कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस या आपको सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि यार कीप द फ्लो, मतलब रुकना नहीं है, चलते रहना है. तो वो जो अंदर से स्ट्रेंथ थी, दैट केप्ट मी मूविंग डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स. माई फैमिली नेवर टोल्ड मी दैट कि कुछ और कर ले, नेवर एवर. ना फादर ने ना मदर ने. उन्होंने हमेशा कहा कि ठीक है पढ़ते रहो बस. मतलब उनके दिमाग में कभी नहीं था कि इसको छोड़ने के लिए बोलेंगे या छुड़वाएंगे. तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन थी साथ में. तो थोड़ा सा बताइए सिद्धार्थ अपनी फैमिली के बारे में. जैसा आपने कहा, आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है, खास करके इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक ओवरसीज बाहर, चाहे वो यूएस है, चाहे यूरोप है, चाहे इन अ लॉट ऑफ अदर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, I think the entire system of education, the way parents deal with their children are very different, or is very different rather. ट्रू. Right? यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे आज भी मेरे ख्याल से there is a lot of involvement जो एक parent का अपने बच्चे की ज़िंदगी में होता है. बिल्कुल. डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो सोचने और वो रास्ते तय करने का, दैट एंटायर प्रोसेस, दैट एंटायर जर्नी. So tell us, tell me about your family in terms of कौन है, किस, what sort of background or what sort of family do you come from? फैमिली में मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स अब नहीं है, और सिस्टर, एल्डर सिस्टर, शी इज़ मैरिड नाउ. फादर इज़ एन एंटरप्रेन्योर, वो इज़ इनटू फार्मा बिजनेस. मदर इज़ एन होम मेकर. और मदर ने ऑलवेज सपोर्ट किया है. पापा ने कभी ये नहीं पूछा कि कितने मार्क्स आए या क्यों फेल हुए, बस जब फीस मांगी दे दी. सिंपल. मतलब फादर इज़ नॉर्मली लेस इन्वॉल्व इन, मतलब जो मेरी जनरेशन है 90s, लेट 90s वाली, वहाँ पे बिकॉज फादर इज़ मोर इनटू अर्निंग थिंग एंड मदर इज़ मोर इनटू हाउस मेकिंग. तो मदर इज़ मोर इन्वॉल्व स्पेशली टुवर्ड्स देयर सन, जो हमारे इंडियन उसमें चलता है कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. बट सपोर्ट वाइज माई फादर नेवर क्वेश्चन मी कि कहाँ गलत हो रहे हो या क्या सपोर्ट चाहिए, तो बस उतना बता दो एंड लगे रहो. रिजल्ट आता था, फेल होके गए उनके सामने, कुछ नहीं किया, बात घुमा दी, मतलब कि जस्ट टू डाइवर्ट. उन्हें पता है मूड तो ख़राब हो गई. अब साथ वाले पास हो रहे हैं एक लेवल पे, वो भी दिन आ गए थे कि जो साथ में शुरू करे थे या बाद में शुरू करे तो वो पहले पास हो रहे हैं और ये नहीं हो पा रहा है. तो जस्ट टू डाइवर्ट ही यूज्ड टू टॉक डिफरेंटली. चल यार आज किसका मैच है, क्योंकि वो भी क्रिकेट साथ देखते हैं, मैं भी करते हैं. तो वैसे सपोर्ट उनकी थी, सबकॉन्शियस सपोर्ट. मदर का एक्टिवली सपोर्ट था. शी इज़ इनटू मोर पूजा पाठ टाइप जो होते हैं कि यार चलो ठीक है, भगवान से फिर प्रार्थना करेंगे या गुरु से करेंगे कि आगे बढ़ जाओ. तो उतना सपोर्ट उनका हमेशा था, ऑलवेज था, आज भी रहा है. मतलब कोई भी चीज़ मैं नहीं भी करता हूँ कि, मतलब माई फादर नेवर क्वेश्चंस मी इन एनीथिंग विच आई स्टार्ट. हाँ, वो ये ज़रूर बोलते हैं कि सीए की अगर तुमने इतनी पढ़ाई करी है तो उस पर फोकस करो, उसके काम पे. सपोज क्योंकि आज के टाइम पे क्या एंटरप्रेन्योर के आइडिया आते रहते हैं, आई हैव टू मेक समथिंग ऑफ माई ओन, तो उनसे डिस्कशन होता रहता है. बट ऑलवेज सपोर्टिव इन दैट सेंस. माई सिस्टर वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव विद मी. अब उनकी शादी हो गई है तो. So it's you and your sister. Sorry? It's you and your sister in the family. Yes, only we do. Okay, got it. तो सिद्धार्थ, ऐसे सुनने में लगता है when it comes to chartered accountancy, it's all about preparation, is all about books. कि आपको बस किताबों में घुसे रहना है और वही आपकी, उसी से आपकी बेड़ा पार लगेगी. बट इज दैट द रियलिटी? मतलब व्हाट्स अ रियल डे इन द लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट सीए लुक लाइक? अभी शायद एक सीरीज भी उस पे आई है, हाफ सीए करके. हाँ, करेक्ट. उसका पार्ट 2 आ रहा है. राइट. सपोज सर 100 में से 10 ही या 15 ही पास होने हैं, राइट. 15 मेहनत भी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोई कर रहा है तो, और एक स्टेज पे आके वो अटका है, नॉर्मली फाइनल में लोग अटकते हैं, तो उसमें मेहनत की क्षमता तो है. अब क्योंकि 15 पास होने हैं, कुछ उसको थोड़ा लक चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड, क्योंकि वहाँ पे लक फैक्टर कैसे आता है कि आपकी कॉपी किसके पास चेक होने जा रही है. राइट. नॉर्मली सीए स्टूडेंट की जो कॉपी है वो सीए ही चेक करता है. दिस इज अ प्रोटोकॉल. अब हो सकता है कोई सीए लीनियंट हो, कोई ना हो, मतलब सेट मैकेनिज्म नहीं है. हाँ, उनके पैरामीटर्स हैं टू गिव द मार्क्स, बट एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं.
आपको क्या डिफरेंट करना है, ये जर्नी आपको ये सिखा देगी। हारना तो सिखाई देगी पक्का। अगर कोई नहीं हारा है जीवन में, एक बार सीए में आके देख ले, मतलब इट मेक्स यू हम्बल। अभी मैं सुबह ही देख रहा था, नीरज चोपड़ा जी 2700 दिन के बाद ही इज़ नॉट ऑन द पोडियम। सो दैट लेवल एक्सपेक्टेशन उनके साथ था। तो वो भी, मतलब एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का कि ही विल नाउ फेस द हम्बलनेस ऑफ बीइंग नॉट अ चैम्पियन एंड ही विल गो बैक मोर स्ट्रॉन्गर। तो सीए हाँ। की जर्नी भी वैसे ही है सर, मतलब आपको वो हम्बल कर देती है। आपने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो रीज़न यही है कि सर जो पार हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे, एफर्ट करने का तरीका सबका अलग है। तो सिद्धार्थ, अगेन गेटिंग इनटू दिस राइट, बिकॉज थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम घुसें, क्यों, नंबर वन आई थिंक जो मैं एज अ लेमैन यू नो, जो आज शायद पहली बार ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के एक कॉन्वर्सेशन कर रहा है। आमतौर पे मैं और मेरे सीए बात करते हैं, हम किन बारे में बात करते हैं कि अच्छा ठीक है कैसे करना है, बुक्स कैसे मैनेज करने हैं, क्या मुझे बिल्स देने हैं, कैसे उनको करना है। बट अदर देन दैट ये कॉन्वर्सेशन शायद ज़िंदगी में पहली बार कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ एंड जानना भी चाहता हूँ, मतलब क्यूरियस भी हूँ। नंबर वन इज़, जैसे आप बता रहे हो ना कि तो वो क्या है, मतलब यू नो इज इट नॉट ओनली अबाउट बुक्स, क्या करना पड़ता है अलग, जैसे वो 10 साल की जर्नी जो 2014 से लेके 2019 की जो जर्नी थी, 5.5 साल, फाइनली जाकर के यू नो आफ्टर यू फेल्ड 10 एग्जाम्स एज यू सेड, व्हाट डू यू थिंक टुक यू ओवर द लाइन, क्या डिफरेंट किया? माई स्ट्रैटेजी गॉट चेंज, आई गॉट लेस डेस्परेट। इसमें क्या होता है कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज यू हैव आस्क्ड इन डिटेल, मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूँ, वहाँ से थोड़ी पर्सनल लाइफ भी लिंक हो जाएगी, शादी भी लिंक हो जाएगी। तो आपको कोई चीज़ पढ़नी है, पार जाना है उसके, द मोर यू गेट डेस्परेट द लेस यू फोकस ऑन द एफर्ट। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल सही बात। मतलब आपका फोकस रिजल्ट पे हो गया। गीता बोलती है कि कर्म करेगा, कर्म करो, तो कर्म से ध्यान हट गया। डेस्परेशन की वजह से स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मीन्स अडॉप्ट करते हैं, शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं। कोई ज़्यादा पाठ पूजा करने लगेगा कि भगवान पार लगा देंगे। भगवान तो कर्म करने को बोल रहे हैं, तो वो पार तो पक्का नहीं लगाएंगे। धोनी ने भी कहा था एक मैच में, गॉड इज़ नॉट कमिंग टू सेव अस। चैंपियन ट्रॉफी जब जीती थी इंडिया, वी वर डिफेंडिंग अ लेस स्कोर। तो मैं रिलेट करता रहता हूँ क्योंकि क्रिकेट इज़ वेरी क्लोज टू मी, आज भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट और लाइफ की जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट काफी काफी सेम है। क्रिकेट नहीं बस सिद्धार्थ, आई थिंक मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स और जिंदगी की जो जर्नी है ना, मतलब काफी जिंदगी same के है। जितने सारे लेसन हैं मेरे ख्याल से वो सारे के सारे स्पोर्ट्स में अवेलेबल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई ऐसा सबक, कोई ऐसी सीख नहीं है जो स्पोर्ट्स नहीं सिखाती है। हाँ, क्रिकेट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्रिकेट इज़ अ टीम गेम जिसपे बहुत बड़ी टीम है आपके साथ। योर रिजल्ट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ 10 अदर्स विल डू। ट्रू, किसी और स्पोर्ट्स में हो सकता है कोई इंडिविजुअल अपना गेम खेल के जीत जाए, बट क्रिकेट इज नॉट। तो सिमिलरली इस प्रोफेशन में भी जो आपने पूछा डिफरेंट क्या किया, एट द एंड आई गॉट लेस डेस्परेट। छोड़ दी थी कि पास होऊंगा ना होऊंगा डज नॉट मैटर। उससे पहले जब मैं फेल हो रहा था, आई वॉज कि यार इस बार तो करना ही करना है, और एफर्ट किया, लेकिन डेस्परेशन बढ़ती गई। एफर्ट थोड़ा, फोकस कम हो गया। एफर्ट था, एफर्ट पे फोकस कम हो गया। तो जो आपकी टेक्निक्स होती हैं पढ़ाई करने की, बिकॉज सीए का जो कोर्स ऐसा है दैट रिक्वायर समराइजेशन, कि अगर आपको 15 चैप्टर 20 चैप्टर कल एग्जाम है, आज रिवाइज करने हैं, एंड 15 चैप्टर का कंटेंट 300 या 400 पेज का है, यू कैन नॉट मेमोराइज 400 पेजेस इन अ सिंगल डे। यू हैव टू समराइज दैट थ्रू आउट योर जर्नी। तो वो बनाना सीख लिया। लोगों से थोड़ी इंस्पिरेशन ली, जो लोग पार हुए थे उनको देखा कैसे हुए हैं। मेन रीजन ये था कि मैंने आई लेफ्ट माई डेस्परेशन, कि ठीक है होगा तो ठीक है। so basically you started focusing more on the process हाँ, as compared to the outcome of the result. होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गॉड्स विल। उससे पहले क्या अहंकार था कि मैं तो कर ही लूंगा। तो वो अहंकार बोल लो, ईगो बोल लो, कि आ जाता है कि यार अब मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता था, तो मेरे से नहीं हो रहा, मैं इस बार तो करके दिखाऊंगा। तो वो जो करके दिखाने की जो मैं थी कि मेरी, वो साइड कर दी। बिकेम लेस ऑफ मैं एंड मोर ऑफ हम्बलनेस, कि ठीक है यार अब हम्बल रहते हैं, मेहनत करेंगे, जम के करेंगे, रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो जो प्रभु इच्छा। तो हो गए। दैट इज द एसेंस ऑफ इट।
अब उसको कैसे पढ़ना है, हर स्टूडेंट की एक अलग पढ़ने की कला होती है। कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ता है, कोई बोलता है सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, कोई बोलता है रात को पढ़ो। तो सबका एक अलग रूटीन होता है, उस रूटीन में सब अलग तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। हाँ, उसमें एक चीज़ अगर कोई प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हमसे सुनेगा तो कभी भी अपने मन में गिल्ट लेके ना आए। इस जर्नी के दौरान गिल्ट विल कम टू हॉन्ट यू मैनी टाइम्स। किस बात का गिल्ट सिद्धार्थ? कि मैं इसमें क्यों घुसा, इतना फेल हो रहा हूँ, मतलब आई एम वर्दी ऑफ इट। वो गिल्ट आ जाती है, यार यही करना था क्या। वो होता ना, काश कुछ और कर लिया होता, तेरा तो किरोड़ी मल में हो रहा था, अच्छे कॉलेज में जाके तू कुछ और अच्छा MBA कर लेता। बहुत लोगों को आ जाती है दूसरों को देख के, अंदर से नहीं आएगी, दूसरों को देख के वो दिखती है। तो वो साइड रखो एंड एक्सेप्ट कि ठीक है, दिस इज़ योर जर्नी, स्लो और फास्ट टाइम विल डिसाइड। किसी की जर्नी बाद में तेज़ होती है, किसी की पहले होती है। तो वो छोड़ दी थी सारी चीज़ें, फोकस किया सिर्फ काम पे, और उसको ऐसा समराइज़ किया कि एग्ज़ाम से आप 2 घंटे पहले पूछो या 4 दिन पहले पूछो, आई एम रेडी फॉर द फाइट, आई एम रेडी फॉर द ग्राउंड एंड आई एम टोटली प्रेजेंट देयर इन दैट मोमेंट। तो वहाँ पे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फिर आते हैं। दैट वाज द एसेंस ऑफ इट। पढ़ाई आपको कैसे करनी है, क्योंकि डेस्परेशन जो थी वो अब आपको रखना हो रखना, इसमें काटना हो काट देना। आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड। माई ओनली रिलेशनशिप इज विद माई वाइफ, फर्स्ट एंड द लास्ट गर्लफ्रेंड एंड नाउ वाइफ। शी गॉट क्लियर्ड अर्ली। ये बहुत लोगों की स्टोरी है, रियल स्टोरी है CS की। दोनों CA So your wife is also CA? यस, दोनों साथ में CA कर रहे हैं। प्यार हो गया, डिसाइड कर लिया कि शादी करनी है। कब करनी है ये नहीं पता। अब ऑब्वियसली इंडिया में क्या होता है कि अगर लड़की की एक सर्टेन एज हो जाए तो कई बार फैमिली प्रेशर आने लगता है, स्पेसिफिकली व्हेन शी हैज कंप्लीटेड हर स्टडीज और उसकी लड़के से ज़्यादा अच्छी जॉब भी है। So your wife started working after she completed her CA? यस, दैट स्टेज भी आ गई थी। इवन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सम टाइम। अब वो प्रेशर वो ने कम्युनिकेट नहीं कर रही है, बिकॉज उसको फोकस करना है कि इसकी पढ़ाई कैसे अच्छे से हो पाए। बट आई कैन फील दैट इन हर वॉइस और द कन्वर्सेशन जो हो रही हैं कि यार कब, मतलब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड ना। मतलब अब आप मेहनत कर रहे हो, फेल हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर फेल हो रहे हो। और वो आई एम श्योर दैट मस्ट हैव बीन लाइक सीरियस प्रेशर। वो आज की डेट में भी लाइव एग्जांपल्स आई हैव सीन जहाँ पे आपको शादी का प्रेशर होता है, दूसरी साइड से उस प्रेशर में आप पढ़ नहीं पाते। वन ऑफ द रीजंस। तो 1-2 साल तो आपके वहीं बीत जाते हैं। तो लास्ट जो, अगर मेरी जर्नी 2014 से शुरू हुई तो 16-17 के बाद दैट प्रेशर ऑल्सो माउंटेड कि भाई वो पढ़ रही है, उसकी CA हो गई है। मोर ओवर दैट प्रेशर बिकम्स व्हेन शी इज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इफ यू से। तो उसकी टेंशन नहीं है उनको, लेकिन भाई तू अभी 25,000 ही कमाने लगा है। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट जॉब, दैट वाज माय सैलरी। शादी से जस्ट पहले की बात है ये। अब माइंड में चल रहा है कि यार साला 25,000 मैं कमा रहा हूँ, CA में बना नहीं हूँ, 2009 से मैं CA में घुसा हुआ हूँ, जीवन में क्या उखड़ा। बैक ऑफ द माइंड ये थॉट्स आएंगे आपको। कोई भी CA एस्पिरेंट अगर फंसा हुआ है तो उसको ये विचार आएंगे ही डेफिनेटली आएंगे, किसी को भी आएंगे। CA क्यों, मेरे ख्याल से आज भी मुझे आते हैं। हाँ, राइट। अब उससे बाहर निकलना विद दैट प्रेशर, यू नीड टू हैव सम इनर स्ट्रेंथ विद यू। अब वो किसी को स्ट्रेंथ अपनी फैमिली से आएगी, किसी को वो स्पिरिचुअलिटी से आएगी। आई हैव फाउंड दैट इन बोथ ऑफ देम कि मेरे को वो माय मास्टर से भी आई, मेरे गुरु से भी आई और मेरी परिवार से भी आई। एंड लकीली अब आप बोलो कि मेरा मतलब फाइनल में 2 ग्रुप्स होते हैं, 4-4 पेपर के एज ग्रुप, मतलब 4 पेपर आप एक बार में दे सकते हो, 4 एक बार में दे सकते हो। तो आई गेव 8 एग्ज़ाम जब मेरा हुआ था, उसमें से मैं टोटल CA में 10 मार्क्स से रह गया था, लेकिन 4 पेपर मेरे निकल गए थे। शादी के बाद जब मैंने दिया तो मेरा हो गया वो बैलेंस 4 भी। तो ये भी आप बोल सकते हो कि जब शादी हो गई, सब सेटल हो गया, तो वो प्रेशर जो था वो ईज ऑफ हो गया।
डेस्परेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई कि यार अब किसके लिए, बट फिर वहाँ मोटिवेशन था कि यार अगर सामने वाले की फैमिली ने या सामने वाली लड़की ने ये भरोसा करके कि ये सीए कर लेगा आगे चल के, शादी कर दी है, तो देन इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Right. यार अब क्या छोड़ना, अब तुमने 19 में से 15 पे तो आ गए हो, 4 पेपर बचे निकाल के उसे भी आप खत्म करो। दैट वाज द मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और डिसिप्लिन, कुछ भी आप बोल सकते हो इस चीज को। तो was there opposition from either of the families when you जब आपने सीए कंप्लीट नहीं किया था, राइट? as you said, सीए आपकी शादी के बाद कंप्लीट हुई, राइट, and your now wife, then girlfriend, had already completed hers यस, 2 years बिफोर। 2 years before. तो वो 2 से 2 ढाई साल तक मतलब उनके घर पे या कहीं पे was there any opposition कि यार क्यों इससे शादी करनी है, कहीं और देख लो? ऑपोजिशन शुरू में था बिकॉज उनकी फैमिली की कोई सिचुएशन ऐसी थी, हर डैड वाज नॉट वेल दैट टाइम, Okay. तो उस वजह से था। इंसान को लेके नहीं था, क्योंकि वो मिले ही नहीं थे। अगर कोई किसी से मिला ही नहीं है एंड द गर्ल हैज़ नॉट टोल्ड देयर पेरेंट्स कि भाई मेरे को इसी से करनी है, तो वी कैन नॉट से कि उनकी कोई उसमें मिस्टेक है। मिलने के बाद एवरीथिंग वॉज सेटल्ड एंड इनफैक्ट मैंने अपने घर पे आई टोल्ड देम, जब मेरा रोका हुआ, मतलब हमारे उसमें रोका बोलते हैं, दैट यू गॉट फिक्स्ड, आई गॉट फिक्स्ड ऑन 16th of January 2019 एंड मैंने घर पे बताया था 25 दिसंबर, जस्ट बिफोर दैट। एक महीना पहले, नॉट not even 1 month. हाँ, हाँ. और बता के, मेरे दोस्त की शादी थी, इवेंट टू डेस्टिनेशन वेडिंग थी उसकी, मैं मम्मा को बता के चला गया था कि ऐसी ऐसी एक लड़की है, अब प्रेशर थोड़ा सा आ रहा है, आप देख लेना, मतलब पापा से क्या बात करनी है, आप देख लेना। और जब मैं आया तो बाय गॉड ग्रेस वो चीज़ें इतनी स्मूथली हो गई, अप्रैल में वी गॉट मैरिड। तो फिर कई बार चीज़ें जब स्मूथ होती हैं तो आपको लगता है कि यार तो अनरियलिस्टिकली स्मूथ भी हो रही हैं। जब लाइफ टफ थी तो लगता है कि लाइफ वॉज हार्श, अब जब स्मूथ हो गई है तो वो आदत नहीं होती ना इतनी आसानी से चीज़ें मिलने की। सीए में देखा था कि यार पास ही नहीं हो रहे, यहाँ कल बात करी, आज शादी हो गई। बहुत लोग शादी में स्टक हैं। मतलब किस्मत वाले भी हो सिद्धार्थ। हाँ। कई बारी, हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मेहनत मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत लोग करते हैं। क्या हर किसी को उसके प्रोपोर्शनेट रिजल्ट्स या गेन्स या रिवॉर्ड्स, जिसको हम कहें किसी भी फील्ड में, राइट, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी, मतलब किसी भी फील्ड में जो इंसान करता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, अप्रैल 2019 में शादी हुई आपकी, नवंबर में यू क्लियर्ड सीए फाइनली। हाँ, उस बार, अब हम ये बात कर सकते हैं शायद, उस बार अगर नहीं क्लियर हुआ होता, हाँ, मतलब क्योंकि शादी हो गई है, अब हाँ। कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई गई है, बिल्कुल। राइट? तब क्या करते? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सिद्धार्थ इज, मैं भी कई बार ही सोचता हूँ, एंड आई थिंक दिस पॉसिबली हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं और जो सोचते हैं कि यार नहीं, ये तो ये करना ही है, राइट? हम वो एक बार ही करते हैं, फेल होते हैं, 2 बार ही करते हैं, फेल होते हैं, 10 बार ही कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं। वो 11वीं बार करना है या नहीं करना है, क्या था उस वक्त दिमाग में? सर उसमें शादी के बाद अगर मैं उससे रिलेट करूँ तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे करना है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट everybody else to follow that path, because CA is not the end. You have to earn money, that is the goal. CA बनना is not the end. उस लड़के का जो नहीं कर पा रहा है, या फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी लड़का लड़की, अगर कोई CA जर्नी में फंसा हुआ है, एक पॉइंट के बाद यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ सर्टेन टाइम लाइन कि यार यहाँ तक अगर मेहनत पूरी करनी है, लेकिन उस टाइम लाइन तक कि मैं मेहनत पूरी करूंगा उस डेट तक। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और सोच सकते हैं, क्योंकि अब पहले CS के साथ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं आते थे। अब यू हैव CPA, यू हैव ACCA इन द मार्केट, तो वो आप कर सकते हो एंड यू कैन अर्न मोर और एट पार विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है अर्निंग का, क्योंकि कुछ लोग ईगो में पड़ के बैठे रहते हैं यार अब तो निकालेंगे, तो वो 10 के 15, 15 के 20 और 20 के 25 साल भी मैंने देखा है लोगों को रुकते हुए। तो यू हैव, दैट इज़ अ पर्सनल थिंग, मतलब सबकी एक अलग जर्नी हो सकती है। मेरे को था कि यार मैं यहाँ तक आ गया हूँ,
तो वन और टू शॉट्स मोर एंड आई विल बी थ्रू, क्योंकि सब कुछ पता चल चुका है, इंटीग्रिटीज पता है कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए पता है, पढ़ाई पहले भी करी हुई है, तो वो कॉन्फिडेंस आ गया था, दैट कॉन्फिडेंस वॉज रिक्वायर्ड और वो मेरे को मिल गया था अप टू दैट पॉइंट। और कई बार क्या वो बोलते हैं ना, सितारे बदलते हैं, दिमाग भी अलग चलने लगता है, मतलब आई डोंट जो भी कह लो, हाँ, जो भी कह लो, ऑब्वियसली some things, some events in life हाँ bring changes. हाँ जैसे लोग काफी ये भी बोलते हैं, अच्छा चलो ठीक है, अब तो नाउ दैट कहते हैं कि जब आपका घर पे बच्चा आता है तो वो अपनी किस्मत लेके आता है या आती बिल्कुल है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल I think I do believe and I do agree. I think there is a lot that we don't know. Right. जितना मैं जानता जाता हूँ ना, उतना ही समझ में आता है कि कुछ भी नहीं मालूम है. कुछ भी नहीं मालूम है, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। Now we talked about the changing times. कौन सा वो फेज था ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी सिद्धार्थ, जब लगा कि विच वॉज पॉसिबली when you felt very broken, when you felt very demotivated कह लो, या कौन सा वो पॉइंट था? आया था ऐसा कोई point? एक पॉइंट आया था, आई वॉज नॉट ब्रोकन फ्रॉम द पॉइंट कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, बट वो सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम पे कि अगर इस बार पास हुए तो शादी होगी वरना नहीं होगी, और उस टाइम में फेल हो गए। अब वो सिचुएशन जो थी वो कुछ फेज 10-15 दिन ऐसा था कि यार किताबें बंद थी। पहले क्या होता था, मैं फेल होता था, अगले दिन से पढ़ाई वापस से वही गधे की तरह लग गए। फिर उस टाइम पे क्या था कि यार जो मोटिवेशन थी तब, अब पता चल रहा है कि वो नहीं मिलने वाली, कि भाई जिससे प्यार किया वो लड़की अब नहीं मिल रही है, क्योंकि ये अटेम्प्ट लास्ट था कि अगर हो जाएंगे तो शादी हो जाएगी, क्योंकि यू हैव टू गिव अ रियलिस्टिक टाइमलाइन टू द अपोजिट Obviously. फैमिली एज वेल। अब वो सबसे एक लो पॉइंट था उस जर्नी का कि यार अब तो पढ़ाई से भी गए और प्यार से भी गए, अब क्या करना है। तो वहीं से फिर जो मैंने बताया, आई एम इनटू मेडिटेशन, नहीं बोल सकते, दैट इज़ अ वेरी वेस्टर्न वर्ड, स्पिरिचुअलिटी भी वेस्टर्न वर्ड ही है, सनातन वर्ड में साधना पाठ कुछ कह सकते हैं, थोड़ा बहुत जहाँ से सीखा करते रहे, तो वहाँ से स्ट्रेंथ मिलती रही हमेशा। मतलब दैट इज़ वन थिंग इन माई लाइफ टिल डेट, एंड आगे भी रहेगी, आई एम वेरी श्योर, दैट इज़ वेरी कॉन्स्टेंट। अब शायद लो फेज वैसे वाले नहीं आएंगे, कोई दूसरा तरीके का हो सकता है आए, बट वन थिंग इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं, अगर कोई भगवान पे मानता है तो भगवान बोल ले, या किसी ताकत में मानता है तो उसको वो वैसे रिस्पेक्ट कर ले। आई बिलीव इन माई गॉड ऑलवेज, कि कुछ है या कुछ नहीं है, मेरे पीछे जो है वो है, दैट पावर इज बिहाइंड मी, दैट महादेव जिसको मैं मानता हूँ वो है मेरे साथ। तो सामने से सिचुएशन लाइफ कुछ भी फेंक रही है, टूटेगा नहीं उस टाइम पे। तो यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, चलो हम उसी वर्ड को हाँ, लेके हाँ। चलते हैं। क्या था, हाउ डिड यू रीच आउट टू योर स्पिरिचुअल सेल्फ, या क्या ऐसा किया टू रीवायर द ब्रेन कि नहीं यार, मतलब वापस सब कुछ छोड़ो एंड कम बैक ऑन ट्रैक? एक वर्ड में अगर उसकी बोले तो सरेंडर। मतलब आई बिलीव इन लॉर्ड शिवा, तो मतलब सरेंडर कि भाई मेरे से जो था मैंने कर लिया, इट्स योर टर्न, अब आप देख लो। हाँ। तो चीज़ें बदल गई। मतलब वही है ना, भगवान भी तो बोलता है ना, गुरु भी बोलते हैं कि यार वो बोलते हैं कि गुरु जो सच्चा गुरु आपको चीज़ बोल रहा है, उसके चेले का या उसके शिष्य का उस पर चलना 100% कई जन्म लग जाते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ट्रू। तो फिर लाइफ आपको सिखाती है। हो सकता है गुरु ही आपको प्यार से आप नहीं सीख पा रहे, तो आपको वो दूसरे तरीके से सिखा रही है, यूनिवर्स आपको सिखा रही है। तो जब आपने सरेंडर कर दिया, देन यू एंड हिम बिकम वन, कि भाई अब तो तेरे ही हो गए ना, तो टेक दैट। हाउ डू, तो आई थिंक सिद्धार्थ, ये मैं भी इंसिडेंटली, मुझे पता नहीं है कि आपको मालूम है या नहीं, बट मैं भी शिव जी का ही भक्त हूँ। अच्छा। एंड I do agree and I do believe
कि कुछ है, आप जैसे किसी हॉस्पिटल में भी जाते हो, बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भी लगता है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है मेरे लिए। जिस भी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे ना, जितनी भी बड़ी हॉस्पिटल हो, जो हॉस्पिटल इज बेसिकली अबाउट मेडिकल साइंस, साइंस जो फैक्ट्स में मानता है, जो लॉजिक में मानता है, बट मंदिर में घुसते ही सबसे पहले आपको मिलेगा एक मंदिर मिलता है, या फिर एक चर्च मिलेगा, या फिर एक शायद एक कोई भी रिलीजियस आपको मिल हाँ, जाएगा वहां पे, right? ट्रेस। So I think कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि everybody knows, everybody wants to believe, and I do believe that there is something जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, right? Because it's unknown and hence we don't want to believe it sometimes. जैसे आपने कहा, you surrendered. उस सरेंडर ने रियल लाइफ में, एक तो था कि अपने अंदर में आपने अपने आप को बोला, या आपने जो भी आपके विद इन यू नो, जो एक संस्कृत में कहते हैं ना कि स्वहम, कि वो मैं ही हूँ, तो यू रीच्ड आउट टू दैट एंटिटी विद इन योरसेल्फ। बट रियल लाइफ में हाउ डिड दैट चेंज योर गेम फ्रॉम देयर? उसके बाद क्लैरिटी आ गई कि जिस पाथ पे चले थे अभी तक उस पर सफलता नहीं मिली है, बट रास्ता सही है। मतलब कि उस पॉइंट पे क्या था, माइंड आपको ये बोल रहा है कि आपने पढ़ाई शुरू करी थी, आप सीए के लिए निकले थे, रास्ते में आपको एक कंपेनियन मिला जिससे शादी तक बात पहुंची, बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस अब वो मटेरियलाइज नहीं होगी। तो माइंड ये सब थॉट्स आपको दिखा रहा है। फिर क्लैरिटी ये आ गई, हाँ, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, मतलब कि वो जो आपने बोला कि उससे जब जुड़ते हो अंदर, तो फिर क्लैरिटी आती है कि क्या बदला, कि रास्ता ठीक है, चलते रहो, जो पकड़ा है वो तो पूरा करेंगे, एंड गॉड्स विल कि भाई हम साथ, मतलब एक मैसेज जो मिलता है कि आई एम विद यू, मूव अहेड। पढ़ा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, दूसरी साइड से फोन आ गया कि भैया शादी तो यहीं होगी, ऑल ऑफ अ सडन। तो मम्मा मिलने बुला रही हैं। तो मैंने कहा यार, मतलब अभी एग्ज़ाम्स, मतलब दूसरा एक ग्रुप हो गया था, दूसरा आने वाला था, तो वो आने वाले हैं, तो बाद में मिलते हैं। नहीं मिल ले भाई आके थोड़े टाइम, एंड उसके बाद पढ़ते रहना। अब वहाँ दिमाग डर रहा है कि यार होने वाली, अगर शादी मतलब बन गई बात, तो होने वाली मदर इन लॉ है ये, उनके पास जाके बैठना है, काइंड ऑफ इंटरव्यू हो रहा है बेसिकली वो। तो उन्होंने बहुत सिंपल समझाया, जिंदगी का टफेस्ट इंटरव्यू, विच टर्न आउट टू बी वेरी इजी फॉर मी लकीली, कि उन्होंने मतलब मेरी वाइफ को बोला कि सपोर्ट हिम इन हिज स्टडी, एंड जब करनी हो कर लेना। तो वो पिक्चर क्लियर हो गई। तो फिर वो जब सरेंडर किया उधर, तो जो चीज़ फेवर में नहीं आ रही थी, अब वो बाय डिफॉल्ट आ रही है। अब क्या बदला क्या नहीं बदला, किस्मत में किसने क्या वो पेच घुमाया, आई डोंट नो, बट थिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब जिसमें आप चाह रहे हो। तो फिर अल्टीमेट आप ग्रैटिट्यूड उसी को बोलोगे। ट्रू, एब्सोल्युटली, कि एब्सोल्युटली। भाई यू आर द मीडियम एंड ही इज़ द डूअर। तो जब सरेंडर हो जाता है, तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि माइंड कैन नॉट बिलीव एंड परसीव। तो शादी के बाद कभी जब मियाँ बीवी में नोक झोंक हो जाती है, या कुछ भी होता होगा, तो वाइफ बोलती है कि देखो मैं तो तुमसे 5 साल 6 साल पहले ही मैंने कर लिया था कंप्लीट। नहीं वैसा नहीं बोलती वो। नहीं, बट हाउ लॉन्ग डिड योर वाइफ टेक टू कंप्लीट हर सीए? आई थिंक 3 or 4 years लेस देन मी। तो मतलब कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ माइंड शी इज मोर शार्प माइंडेड, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ को। wonderful, great. I think I would love to meet your wife, and possibly I'm sure that she will watch this episode when it comes out. But Siddharth, I think moving away, I think we have talked a lot about that journey. I think let's talk about your other love, which is sports, or more specifically cricket, right? How do you think, या क्रिकेट में रुझान कब से रहा? मतलब when did you start playing? बचपन से ही सर, मतलब कि
ऐसा मेरे को कोई टाइम याद नहीं है जहाँ मैंने रोज बैट ना उठाया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फेज, मतलब एक पॉइंट ऐसा था 2009 के बाद कि या तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे या उस किट को जला देंगे। हाँ, मतलब अगर सीए करनी है तो सीए एंड क्रिकेट कैन नॉट गो टुगेदर एट द Together. सेम टाइम। Right. इट कैन गो साइमल्टेनियस, मतलब इट कैन गो वन आफ्टर द अनदर, साथ में नहीं चल सकते हैं। क्योंकि तब अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छे लेवल पे चले भी जाते। और अब इतनी अपॉर्चुनिटीज जो दिख रही हैं, तब तो आईपीएल नया नया आया था, 2009 की बात है, 7 में आई थिंक आईपीएल लॉन्च, 8 में हुआ था शायद सिद्धार्थ। 8 या 9 में हाँ, हुआ था। इट 8 वाज वेरी मुझे जहाँ तक रिसेंट। याद है। तो जो यंगस्टर्स थे, जो गैप था, मतलब पहले क्रिकेट में क्या था देश में कि आप 12th करते हो, साथ साथ खेलते रहते हो, अंडर 16 होता है, अंडर 13 होता है, अंडर 19, देन रणजी, देन दुलीप ट्रॉफी, देन यू रीच द इंटरनेशनल लेवल। आईपीएल आने के बाद ये जर्नी बहुत फास्ट ट्रैक हो गई थी बहुत क्रिकेटर्स के लिए। तो खेल रहे थे अच्छे लेवल पे, दिल्ली क्रिकेट में अच्छे लेवल तक चले भी गए थे, साथ साथ खेल भी रहे थे। बट फिर एक पॉइंट आया कि यार या तो पढ़ाई हो सकती है या क्रिकेट हो सकता है। तो फॉर दैट पॉइंट क्रिकेट वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फिर जब सीए बना, मतलब देख रहे थे, खेल नहीं रहे थे, बट वो आग जो होती है, वो पैशन जो होता है, वो रहता है। फिर जब सीए बना, या बनने से थोड़ा टाइम पहले मेरे को पता चला सीए की भी क्रिकेट होती है, सीएस की भी एक अच्छे लेवल की लीग्स होती हैं। मैंने कहा यार ये सही है भाई, लेकिन वही खेल सकता है जो सीए है। तो अब क्रिकेट खेलने के लिए सीए बनना पड़ेगा। अब क्रिकेट खेलने के लिए सीए बनना पड़ेगा। और सही में एक रीज़न था, मतलब सीए का मैं काम करता हूँ, आज भी करता रहूँगा, बट दैट एडेड टू माई रीज़न टू बिकम अ सीए कि भाई अच्छे लेवल पे क्रिकेट भी तो खेलना है। ये जो क्रिकेट की जर्नी है या सीए की जर्नी जो कभी छोड़ आए थे 2009-10 में, वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो फ्लो विद दैट थिंग एंड कैरी ऑन। तो फिर अच्छी टीम मिली वहाँ पे, अच्छे लोग मिले, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। अब नाउ मोर देन 6-7 ईयर वी आर प्लेइंग रेगुलरली, हर हफ्ते। तो वो जो टाइम था ना सिद्धार्थ, व्हेन यू हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन क्रिकेट एंड परसुइंग CA। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर फुल टाइम और प्रोफेशनल क्रिकेट और बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर? 2 रीजंस थे सर। फैमिली को उसके बारे में इतना पता नहीं था कि प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बना जाता है। फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में नहीं है, बट कजन्स लोग सीए हैं, तो फैमिली को उसका पता था। तो फैमिली से पूछा क्या करें, तो भाई टेक योर कॉल, बट हमें लगता है कि पढ़ाई होना ज़रूरी है, विच इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट वॉज द राइट कॉल। कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और क्रिकेटर में भी, क्रिकेट जर्नी में भी आपको कुछ नहीं हुआ, तो फुल स्टॉप हो जाएगा। तो बाद में धोनी की एक बात सुनी, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा पहले पढ़ लो भाई। मतलब ही वॉज ऑल्सो रेलवे आई थिंक टीसी, राइट? तो पढ़ाई तो उन्होंने भी करी थी। इवेंचुअली वो उनकी जर्नी क्रिकेट में ही बिकेम अ लेजेंड, बट आई थिंक दैट वाज द राइट कॉल कि यू हैव टू हैव सम थिंग कि भाई ठीक है, क्योंकि क्रिकेट उसमें एक क्लैरिटी नहीं दिख रही थी। क्योंकि क्लैरिटी हाँ, कि मेरे को पता है मतलब कि एज इन व्हाट यू आर सेइंग इज, व्हाट आई वांटेड टू नो इज, अपना अपना अंतर्मन बड़ा जरूरी होता है ना सिद्धार्थ। हाँ हाँ हाँ, मतलब वहाँ ये क्लियर था कि भाई सीए करेंगे, मेहनत करेंगे तो सीए तो निकाल लेंगे। वहाँ मेहनत करेंगे, ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन क्रिकेट स्टिल। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है इंडिया में, बट देर आर वेज। ट्रू ट्रू। तो वहाँ ये नहीं पता था कि मेहनत करके भी कहीं पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। एटलीस्ट यहाँ मेहनत करके सीए का टैग मिल जाएगा, एक डिग्री आ जाएगी। मेहनत देर से होगी या जल्दी होगी, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, बट पता है कि आपके हाथ में है। सीए स्टिल अ कोर्स इन आर कंट्री जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट है, अगर उसके बेटे को भी सीए बनना है तो उसको भी उतनी मेहनत करनी है जिसकी एक नॉर्मल आदमी को करनी है। कोई रिजर्वेशन, कोई कोटा नहीं है। तो मेहनत वाला रास्ता चुना था बस दैट, क्योंकि यहाँ थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा थी। अब इवेंचुअली क्रिकेट भी खेलने को मिल ही रहा है अच्छे लेवल पे। ट्रू, एब्सोल्युटली, दोनों Right. चीजें मिल गई। दोनों चीज़ें मिल गई। वंडरफुल, ग्रेट। तो अब क्रिकेट भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, आगे का इससे आगे क्या सोचा है सिद्धार्थ? सो वन इज ऑफ कोर्स यू नो आई मीन कंटिन्यूइंग विद व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट इज देयर समथिंग इन टर्म्स ऑफ अ प्रोफेशनल एस्पिरेशन जो अब इसके बाद दैट यू मे हैव सेट योर साइट्स ऑन, कोई एक Yes. नेक्स्ट लक्ष्य कह लो इट इज़ उसको? देयर एंटरप्रेन्योरशिप। Okay. उसके लिए द रिसर्च इज
almost done. Maybe 6 months down the line or 1 year max, it will be live. तो सीए प्रैक्टिस छोड़ दोगे? No, sir. It will be there. वो चलता Because रहेगा. my wife has recently left her job to enter into her own thing. So now Oh. there is a support as well. Mm-hmm. Because she is a CA and a CPA both. CPA is a Wonderful. global chartered accountant in simple language. She has global exposures. तो प्रैक्टिस को एक लेवल तक लेके जाना है, ऑटोमेट करना है कि उतना कि जो डे टू डे टास्क होते हैं वो होते रहे. कर भी दिया है. आई डोंट सिट इन माई ऑफिस मोर देन 3 hours अ डे. उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठता हूँ. खाली भी हूँ तो भी नहीं बैठता हूँ. आई मेक इट अ हैबिट कि लोगों से जाके मिलूँ. बिकॉज CA practice nowadays is more about networking. True. Because as per our ethics, we are not allowed to market ourselves directly. There are ways to it, legal ways to it, कि कैसे करना है. But for that to happen, you need to have a good network. जितने नेटवर्क आप बिल्ड करोगे एंड जितना लोगों का आप पे ऊपर भरोसा बढ़ेगा, you will get the work. सिंपल मैथ्स है CA में काम लाने के लिए. या तो आपका फोर फादर्स या आपकी प्रैक्टिस ऐसी चल रही हो कि ऑलरेडी काम है फर्म में. नए लोगों को लाना है तो उनका एक ये तरीका है कि सारा काम आप खुद कभी नहीं कर सकते. मतलब प्रैक्टिस को अगर हम बिजनेस की तरह मान लें कि भाई जो बिजनेस ओनर है वो सारा काम खुद नहीं कर सकता. गाइड कर सकता है, मार्केट कर सकता है, सेल ला के दे सकता है, एग्जीक्यूशन सारा नहीं कर सकता. यू नीड टू हैव अ टीम. सो एक लेवल तक टीम बन गई है. वी आर बिल्डिंग मोर इन टू दैट एस्पेक्ट. एंड देन वंस दैट इज सेटल्ड एंड मेरे को लग रहा है कि हाँ इट विल गो in an automation mode to the growth stage or a successful stage, we can say entrepreneurship parallelly. क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीज है, that seed is there from my grandfather कि उन्होंने रेलवे, he was into railways, उन्होंने पापा को कहा था कि भाई कुछ अपना करना ज़रूरी है. तो father did it, take it to a level. Now it is my turn to take it to the next level. So God wish कैसा unfold होता है. I'm sure. I really hope and I really pray that everything goes well with you, Siddharth. मतलब that is the vision. Wonderful. So tell me, क्या बोलोगे? मतलब somebody who's preparing for their first CA attempt, what would you say to that individual? First attempt जो ले रहा है सर, just go with the flow. जो आता है आपको उस पर फोकस करो. बाहर cut the external noise. Be prepared. Because आज की डेट में दे आर ट्राइंग टू मेक द एंट्रेंस लेवल टफ एंड द फाइनल लेवल अ लिटिल ईजियर. ओके. बिकॉज दैट फनल वॉज क्रिएटेड. एंट्रेंस तो था पहले, घुसते चले गए. फाइनल की फनल छोटी है, निकलने का रास्ता कम है. दैट बॉटल नेक इज क्रिएटेड. नाउ द इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन द करिकुलम एज वेल कि टू मेक दैट एंट्रेंस टफ, दैट वहाँ पे जज हो जाए दैट हु इज़ वर्दी ऑफ क्लियरिंग द फाइनल लेवल. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर. Take guidance from good teachers available in the ecosystem and be well prepared. CA का एक ही मंत्र है, you have to be super short about your preparation, summarize it to a level कि भाई आपको सब चीज़ें पता है. and for that to happen आपको उसमें ज़्यादा टाइम डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा. that is the only thing CA demands, hard work and discipline. अगर वो है रेगुलर तो आप कर जाओगे. 12th में क्या होता है या बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, हार्ड वर्क इज़ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इन सम एग्जाम्स. किसी बड़े एग्जाम में साल भर होगा. बट CA डिमांड्स हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो अगर वो किसी में है या वो दे सकता है, सोशल मीडिया के टाइम पे थोड़ा कम हो गया है वो फ्रेम टाइम, फोकस टाइम, बट वो ज़रूरी है. तो आई एम थिंकिंग सिद्धार्थ, आई मीन इवन इफ आई वर टू compare it with life, is it why the number of fully qualified chartered accountants is so low in India? Because of the requirement जो अभी आपने बताया ना कि consistently hard work और discipline, ये दोनों चीज़ें लगातार मतलब इसमें आप रुक नहीं सकते, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कुछ there is no लगातार is required to come into that top 10-15. वही आएंगे जो कर रहे हैं. सिंपल. विराट कोहली एक ही है, उसका हार्डवर्क से फिटनेस में. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फील्ड में एक फिटनेस लेवल सेट करे. मतलब हर एक स्पोर्ट्स में भी आप देखो तो
those who have done it on a consistent basis are remembered for a long time. तो वो effort आपको CA में भी चाहिए, and might be that reason कि सब लोग that line cross नहीं कर पाते हैं, though there are alternatives available to earning, but CA की उसमें that demands consistency and hard work. So is that वो मैं आई थिंक आई वांटेड टू चेक यार, मतलब अदर देन एकेडमिक्स वो कौन सा एक ऐसा हैक है जो हर एक सीए एस्पिरेंट को पता होना चाहिए? सो मे बी यू जस्ट टॉक्ड अबाउट इट नाउ दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक अदरवाइज, आई थिंक प्रिपरेशन वाइज मेरे ख्याल से जो भी कोई सीए पढ़ने का सोच के निकलता है वो अपने लेवल पे उतनी मेहनत और उतनी लगन मेरे ख्याल से सारे ही लोग डालते होंगे. बिल्कुल करते हैं सर. सी क्रिकेट से फिर मैं अगर रिलेट करता हूँ, दिमाग में चलता रहता है क्रिकेट ना. राहुल द्रविड़ वॉज नॉट द मोस्ट टैलेंटेड, इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग, बस द मोस्ट हार्ड वर्किंग. Most उन्होंने भी एक disciplined. जगह बोला आके कि आई थॉट ऑफ डूइंग अ सीए, फिर मैंने सीए का करिकुलम देखा, देन आई मेड माई एफर्ट, मल्टीप्लाइड माई एफर्ट इन टू क्रिकेट, बट मोस्ट हार्ड वर्किंग. तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत शार्प माइंडेड टैलेंटेड होना है. बेसिक अगर आप एवरेज भी हो स्कूल में, एनीबडी, मतलब ऐसे भी लोग देखे हैं जो 50-52% 58-59-60 वाले भी दे आर सीएज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज दे नो हाउ टू डू दैट एफर्ट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. दैट इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली इन दिस इरा, क्योंकि कंट्री नीड्स मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मोर प्रोफेशनल, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड business owners are increasing day by day. Correct. As on date, 1.5 to 1.6 crores registered firms are there in India. Unregistered वे में कितनी चल रही हैं उसका किसी को नहीं पता, but I am talking about the registered number. And on that number you have 1.5 to 1.6 lakhs chartered accountant in practice. अब वो practice में वो भी लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है, बट दे आर इनटू स्टॉक मार्केट्स और दे आर इनटू सम अदर थिंग. तो प्रैक्टिकली 1 से 1.25 लाख लोग 1.5 करोड़ बिजनेस पे बैठे हैं. तो सपोज उसका नंबर निकल के आता है, आई थिंक एक सीए पे 100 या 150 कंपनीज, बिजनेसेस, विच इज प्रैक्टिकली, अगर वो अच्छे लेवल पे कर रही है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैंडल फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आई थिंक सिद्धार्थ, ऑन दैट नोट मे बी इसी में थोड़ा सा अगर हम डीप में जाएं, एनीबडी वाचिंग यू, somebody who's possibly an aspiring chartered accountant, right? या जिसको मन है या जिसको वो क्यूरियोसिटी या वो कौतूहल है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जानूं, समझूं, पढ़ूं, क्या है उसका प्रोसेस? just for so that टेक्निकल वाइज करिकुलम, हाँ, मतलब करिकुलम वाइज, या मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल somebody कोई 10th में है, 12th में है, 12th में मान लो कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहा है, या कोई साइंस भी लेके पढ़ाई कर रहा है. ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आपको कॉमर्स ग्रेजुएट ही होना है. नहीं, साइंस वाले भी सीए बन सकते हैं. प्रोसेस बहुत सिंपल है. देर इज एन एंट्रेंस एग्जाम. एट माई पॉइंट देर वॉज 4 एग्जाम्स, नाउ आई थिंक देर आर 6 एग्जाम्स एट द एंट्रेंस लेवल. कुछ उसमें जो करिकुलम है वो आपका 12th वाला ही है. इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कुछ कॉमर्स के टॉपिक्स हैं उसमें, अकाउंटिंग है क्योंकि अकाउंटिंग इज़ द कोर ऑफ इट. फिर नेक्स्ट लेवल आता है इंटर एग्ज़ाम, वहाँ पे 7 एग्जाम्स हैं, which is divided into company law, taxation, GST, income tax, financial reporting, strategic management, वो सारा करिकुलम है. फाइनल लेवल पे वो थोड़ा और बढ़ जाता है. करिकुलम सेम रहता है, मतलब टॉपिक सेम रहते हैं, बट वी गो मोर डीप इनटू दैट. वी हैव टू स्टडी फुल इनकम टैक्स एक्ट, वी हैव टू स्टडी फुल GST एक्ट, वी हैव टू स्टडी फुल कंपनी लॉ. कंपनी लॉ में अगर मान लो सपोज 200 सेक्शंस हैं, तो दोज आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स इंटर एंड फाइनल लेवल पे. तो आपको पूरा कंपनी लॉ याद होना चाहिए, पूरा सेबी का लॉ, पूरा फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग एंड कंपटीशन एक्ट, बहुत सारे लॉज हैं. अब इंस्टीट्यूट ओपन बुक एग्जामिनेशन पे भी आ गया है, एक पेपर है जो ओपन बुक कर दिया है, बिकॉज देर वॉज अ डिमांड कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट द CS which the institute is producing, institute means our body, ICI, are not matching with the requirement of the industry. एक्सेल नहीं आता था पहले CS को. एक्सेल इज़ अ नीड दीज डेज. अब AI आ गया है, बहुत जल्दी से ट्रांजिशन हो रहा है. तो इंस्टीट्यूट इज़ मेकिंग अ वेरी डिलीजेंट एफर्ट कि भाई ये स्किल्स भी आपको साथ साथ सिखाई जाए. अगर कोई आप CA में ये सोच के घुसे कि सिर्फ अकाउंटिंग करेगा, दैट इज़ नॉट दैट. यू हैव टू स्टडी लॉ, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सब पढ़ना पड़ेगा आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्टीट्यूट इज़ मेकिंग अ वेरी
फास्ट एफर्ट कि भाई आपको स्किल्स भी सिखाई जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चैट जीपीटी चलाने की या जेमिनाई चलाने, व्हाट अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी एआई टूल हो, कि आपको इंडस्ट्री रेडी कैसे करना है, तो वो भी आपको सिखाया जा रहा है इस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ द करिकुलम। क्योंकि अगर आपको किसी इंडस्ट्री में काम करना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं कर रहे हो, तो देन फिर कंप्लेन आती है कि योर पैकेज इज लो, सीए बनने के बाद भी ये है। तो टू ब्रिज दैट गैप, इंस्टीट्यूट on the other side and the professional teachers on this side, they are making a conscious effort these days कि भाई अगर सीए निकल रहा है तो उसको ये स्किल्स तो पता ही होने चाहिए, that is deemed. Got it. What would be your advice to somebody who has just failed their CA final? Sir, that can be a subjective thing. मतलब उसको करना है कि नहीं करना, that he has to decide, he or she has to decide कि भाई आपको आगे करना ही नहीं करना। नहीं करना तो क्या करना है, there are options to it. मतलब other than CA there are similar courses which I talked about, ACCA and CPA are there. लेकिन अगर करना है तो you have to study your copies. इंस्टीट्यूट आपको कॉपी देता है, you can get what you have written, आपको चेक कॉपी मिल जाएगी, मैच विद द आंसर्स विच इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू राइट। इंस्टीट्यूट दोनों दे सकता है, सजेस्टेड आंसर जिसको हम बोलते हैं, आपकी क्या मिस्टेक्स हैं उसमें। बहुत टाइम क्या होता है, पर्सन को एग्ज़ाम दे के आता है, ही और शी नोज कि भाई पार होंगे या नहीं होंगे, एवरेज बीच में फंसे हैं तो 2-4% इधर या 2-4% उधर पास होने का स्कोप होता है। अगर कोई वैसे लेवल पे फेल हुआ है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं फाइनल में, तो यू हैव अ क्लियर विजन कि भाई जल्दी से पास हो सकते हो, बट यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ कि जो मिस्टेक्स आपने करी हैं दोज आर नॉट रिपीटेड, बेसिक थिंग्स जो सब बोलते हैं। बट मोर ओवर आपको वो दोबारा वो पढ़ाई करने की ताकत वो आपको अंदर से जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सेम कोर्स को आपको दोबारा पढ़ना है, कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, आप कुछ चेंजेस आए तो अलग बात है। लोग परेशान क्यों होते हैं कि आपको सेम चीज़ दोबारा से पढ़नी है। तो सिद्धार्थ, अगर ऐसा ही है कि आप सेम चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे आपने बताया यू टुक व्हाट 10 अटेम्प्ट्स बिटवीन 14 एंड 19, राइट? 2014 एंड 2019, तो सेम कोर्स पढ़ के व्हाई इज इट दैट पीपल आर अनेबल टू क्लियर दोज एग्जाम्स? दो रीजंस या मल्टीपल रीजंस मैं बताऊं। कोर्स इज वास्ट, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कवर द होल कोर्स। उस मतलब कर सकते हो आप पूरा कोर्स कवर, बट टू रिमेंबर दैट ऑन द डे बिफोर एग्जाम इट इज़ टफ। अब इंस्टीट्यूट आपको क्या उठा के दे रहा है और क्या नहीं दे रहा, क्या गूगली डालेगा, यू आर नॉट अवेयर। हर अटेम्प्ट का पेपर एक अलग तरीके से सेट होता है। उन पेपर्स में भी, सपोज इन लास्ट एग्जाम लॉ पेपर वॉज ईजी, इट इज़ नॉट डीम्ड कि इस बार वो ईजी होगा या टफ होगा, या बिल्कुल ही गूगली होगा। पढ़ाई आपने करी हुई है, बट इंस्टीट्यूट ऑल्सो टेस्ट योर स्टेमिना एंड माइंड सेट देयर, दैट हाउ टू स्टार्ट दैट पेपर। अगर कोई टफ पेपर आया है तो आई एडवाइस कि जो लोग पूछते हैं कि भाई पीछे से शुरू करो, क्योंकि किसी को टफ पेपर बनाना है, अगर वही वहीं से बात शुरू होती है, 100 में से 15 पास ही करने हैं, और टफ पेपर अगर बनाए तो आपको पहले क्वेश्चन पे वो फंसाएगा। पहला क्वेश्चन हमेशा टफ होगा टफ पेपर का, पहला या दूसरा क्वेश्चन, कि आपका टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाए। 1 घंटा अगर आपका पहले क्वेश्चन पे बीत गया तो देन यू गेट इनटू पैनिक मोड, फिर आपको जो आता भी है आप भूल जाओगे। तो स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स। मतलब उस पेपर में समझ ये आया कि आपको 100 नंबर का अटेम्प्ट ही नहीं करना है भाई, 80 करो या 70 करो, लेकिन ऐसा करो कि 50 आ जाए। राइट, दैट इज द ट्रिक देयर। तो इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ बदल के देता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि सेम कोर्स पे आपको सेम आंसर लिखना है। हो सकता है कोई टॉपिक पिछले 10 साल से नहीं आया है, इंस्टीट्यूट ने टच कर दिया अगले एग्जाम में। इंस्टीट्यूट का आप ये तो बोल नहीं सकते कि भाई वो कोर्स का पार्ट नहीं है, कोर्स का पार्ट तो है, बट रेगुलर नहीं है वो कोर्स में। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आउट ऑफ करिकुलम तो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, बट वो गूगली है, तो यू हैव टू सेट दैट स्ट्रैटेजीज। वो जज करना आपको मॉक से ही आएगा, आपको मतलब मॉक एग्जाम देने पड़ेंगे उससे पहले। So Siddharth, what would you say is more difficult? Is it more difficult to prepare for the CA exam, or is life more difficult after you become a CA? जब उस फेज में थे तो लगता था बाद में आसान है, अब लगता है वो वाली आसान थी। तो बट ऑन अ सीरियस नोट कि आफ्टर सीए यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ।
मतलब दैट थॉट प्रोसेस कि अब पढ़ाई बंद हो गई, वो कभी नहीं आएगा सीए की जर्नी में. पढ़ाई आपकी कभी भी बंद नहीं होगी. यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपग्रेडिंग, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. जितना जल्दी वो फैक्ट आप एक्सेप्ट कर लोगे, द मोर हैप्पियर यू विल बी. कि लक्ष्मी माँ की कृपा चाहिए तो सरस्वती माँ के थ्रू ही रास्ता जाता है. True. हमारे Absolutely. प्रोफेशन में, Absolutely. स्पेसिफिकली इन आवर प्रोफेशन. नहीं, मेरे ख्याल से हर प्रोफेशन में ही हर है. प्रोफेशन में ही है, बट मतलब हम मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा प्रोफेशन होगा जहाँ पे बिना सरस्वती माँ के आशीर्वाद के आप लक्ष्मी माँ तक पहुँच सकते हैं. हाँ, तो वो चीज़ है. आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. यू हैव टू बी अपडेट विद द मार्केट. अगर आप स्पेसिफिकली इफ समबडी इज इन प्रैक्टिस, उसको तो ज़्यादा करना पड़ेगा ये चीज़. तो लाइफ इज नॉट टफ But different. बट डिफरेंट. Understood. Understood. So did kind of finally crossing the line as a CA feel like an accomplishment? Did you did you start looking at yourself differently, or did it just change the way others looked at you when you finally crossed the others line? looked at me. There are instances कि जिसके पास सीए की डिग्री नहीं है उसको सीए से भी ज़्यादा नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ वर्क जो वो कर रहा है. बट भरोसा उस सामने वाले का उसी के ऊपर है जिसके पास सीए की टैग है. दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर प्रोफेशन. कि अगर आप सीए बन गए हो तो आप पे भरोसा किया जाएगा. दैट इज इम्प्लाइड. कोई भी अगर आप एडवाइस दे रहे हो, आप गलत भी दे दोगे कॉन्फिडेंटली, True. people will trust you. So people start to look at you differently. Internally, आज में और कल में अगर रिजल्ट आके मैं सीए बन जाता हूँ, my mindset don't changes, my knowledge don't changes in 24 hours. मैं जैसा दिखता हूँ मैं कुछ नहीं बदल रहा 24 घंटे में. तो मैं तो वैसा ही हूँ. साथ में टैग लग गया है तो लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है कि साहब अब ये सीए साहब हो गए हैं, सीए स्टूडेंट से ये उस एलीट क्लास में आ गए हैं जैसा आपने शुरू में बोला. हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वी आर डिफरेंट. I mean, हाँ, सिद्धार्थ इलीट क्लास इसलिए क्योंकि शायद वो नंबर कम है ना यार. हाँ, बहुत कम है ना वो नंबर. समझ रहे हो कि मतलब अगर मैं, जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पूरे आई थिंक मैं स्कूल से लेकर के अभी तक अगर मैं अपने दोस्त, अपने क्लासमेट्स, अपने बैचमेट्स अगर मैं सबकी गिनती करूं तो होंगे यार कुछ, मतलब हज़ारों में नहीं तो 100 में तो हंड्रेड्स ऑफ देम डेफिनेटली होंगे. I don't think I have any friend or batchmate or anyone that I know who actually turned out to become a chartered accountant. नहीं है. अच्छा. तो as I said, अगर आप एक इतने बड़े देश में अगर वो नंबर इतना छोटा है, तो मेरे ख्याल से as you said, I think you know उस वो एक चीज़ को पाने के लिए जो मशक्क़त, जो लगन और जिस अनुशासन की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुटा पाते हैं अपने अंदर, या वो हिम्मत कह लो. क्योंकि मुझे ऐसा ये भी लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, राइट? यू ऑल्सो नीड टू हैव द करेज. वो हिम्मत भी उतनी ज़रूरी है. वो ज़रूरी है सर. मतलब माई पॉइंट सेइंग इज कि वी आर नॉट एलीट और somebody different is that a chartered accountant should not associate himself to be superior to somebody else in terms of any profession. मतलब वो humbleness होनी चाहिए. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि I have seen people changing before and after they get that degree. That should not be the case, be it in CA or it in any profession. Any profession, true. That humbleness should be there. मतलब इंसानियत की तरह ही चलनी चाहिए. अगर आप CA बन गए हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी गाड़ी पे CA का लोगो लगाना ही है. I think आपने देखा होगा बहुत लोगों को लगाते अच्छा, हुए. ऐसा भी होता है क्या? गाड़ी के पीछे CA का लोगो आप लगा सकते हो एंड इट इज़ अलाउड. बट मतलब नथिंग अगेंस्ट दोस्त की जो लगाते हैं, वो मेरे ही भाई बंधु हैं, मेरे ही प्रोफेशन के हैं. बट ठीक है, हम CA बन गए, हमने अपनी जर्नी चली, आप आपकी जर्नी चल रहे हो, हैप्पी. हम इधर हैप्पी हैं, आप उधर हैप्पी हो. वी आर नॉट डिफरेंट देन यू. मतलब ठीक है, हम इस क्लास के हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है, रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है आपको उसकी पता है. बट जस्ट टू से दैट कि वी आर सुपीरियर और एलिट इन टर्म्स ऑफ आवर ईगो, नॉट बाइंग दैट फैक्ट. वी आर नॉर्मल. आई थिंक मुझे वो कौन सी मूवी थी सिद्धार्थ, बहुत साल पहले आई थी, स्पाइडरमैन की जो पहली वाली मूवी आई थी ना, जो स्कूल में दिखाई थी हमें. हाँ, कौन सा क्या मैगवायर है वो नाम, मैं लीड एक्टर का भूल रहा हूँ अभी. और उसमें एक लाइन बहुत फेवरेट हो गई थी मेरी कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट कम्स. आई थिंक वो एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है. आई थिंक विद इट कम्स not just with great power but with any power or with any sort of authority. I think Any it authority. brings with it a lot of responsibility.
जिसके बारे में हम सबको इल्म होना चाहिए, जिसका हमें आई थिंक वी नीड टू बी कॉन्शियसली Once अवेयर you ऑफ are दैट. sitting at that table of your office signing a balance sheet, आप सीए हो, कीप दैट ईगो विद यू कि मैं साइन तभी करूंगा जब मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ें अकॉर्डिंगली चल रही हैं या ठीक है. मतलब वंस यू आर आउट ऑफ इट, डोंट कैरी दैट ईगो आउट ऑफ योर ऑफिस. ट्रू, एब्सोल्युटली. कि भाई हम सीए हैं तो हम डिफरेंटली बिहेव करेंगे या हमको कुछ अलग से मिलना चाहिए. दैट इज मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई हो सकता है एग्री ना करता हो, बट वंस वी आर एट दैट पोजीशन, जब हम अपना रोल निभा रहे हैं तो ठीक है, अच्छे से निभाना है, बिकॉज वी आर एलीट इन दैट रोल. वी आर एलीट कि True, भाई अगर absolutely. किसी बड़ी कंपनी की कोई बड़ा ऑडिटर, अगर इफ समबडी इज साइनिंग दैट बैलेंस शीट, ही हैज टू कीप दैट कि भाई सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है. बट आफ्टर दैट ठीक है, वी आर नॉर्मल लाइक यू एंड अदर प्रोफेशंस. हाँ, मतलब आई थिंक द बिगेस्ट स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी दैट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज इज कि कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसका बैलेंस शीट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन कर सकता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल. ट्रू, एब्सोल्युटली. सिद्धार्थ, जब पढ़ाई कर रहे थे उन दिनों में, आज ड्यूरिंग दैट एंटायर जर्नी, वाज देयर एवर लाइक अ कोई सामने कोई ऐसा स्टिकी नोट रखे हुए थे जिसमें कोई लाइक देयर वाज सम मोटिवेशनल quote or It was there. I always wanted to get a rank in CA, specifically in CA finals, and my journey was going in the right direction. Up to a certain point, something happened in the family, and my period of study got disturbed for a good handsome time, 2 से 3 साल के लिए. So that thing got left out, बट दैट स्टिकी नोट वॉज स्टिल देयर कि भाई ठीक है, चलो कभी रैंक लेके आएंगे, बिकॉज सीए में रैंक लाना इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स. तो रैंक आया? नहीं. अच्छा. नहीं आया वो, बट ठीक है, उसका मलाल नहीं है. बट दैट वॉज वन थिंग. एंड आई यूज टू राइट जर्नल्स दैट टाइम. अभी भी कभी कभी हफ्ते में 1 से 2 दिन आई राइट बिफोर स्लीपिंग, रात को, कि जीवन से क्या चाहिए. मैनिफेस्टेशन में आई बिलीव कि सपोर्ट होता है. इफ यू राइट, ऑफ कोर्स होता है, डेफिनेटली होता है. मतलब मैं तो आई थिंक, और सिद्धार्थ अगर देखोगे ना, मैनिफेस्टेशन जो ये वर्ड है, इसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा बातें होने लगी हैं. राइट. आज से 10 साल पहले इस बारे में कोई बात नहीं करता था. ये था तब भी. मेरे ख्याल से आज हम इंस्टा पे मैं कई सारे चैनल्स देखता हूँ, हालांकि हो सकता, हाँ, ये सीक्रेट था, हिडन था आई थिंक. मतलब आई बिलीव इन दैट कि वो काम करती है. किस लेवल पे करती है, दैट इज एन अननोन टेरिटरी. किसके लिए किस लेवल पे कर सकती है, यू कैन नॉट से. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक बुक आई थी, मैजिक, हाँ, लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए. तो इट इज नॉट अ लॉ. मैनिफेस्टेशन कैन नॉट बी सेट एज अ लॉ. अगर लॉ है तो आपने आज रात को कल कोई बड़ी चीज मांगी या मैंने मांगी, तो दोनों को मिल जानी चाहिए. तो लॉ तो नहीं है. हाँ, नो, आई थिंक इट डजंट, बट वर्क्स डिफरेंटली. सिद्धार्थ, वो जब मैं सोचता हूँ ना, ये जो अभी आप बता रहे हो, मेरे दिमाग में एक छोटी सी क्या कहते हैं उसको, एक कहानी आती है जहन में, जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना था, जो मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी कभी. स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत लोग जानते हैं. स्वामी जी, ये जो हम मैनिफेस्टेशन और जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो स्वामी विवेकानंद एक बार जब पहली बार अमेरिका गए थे, आई थिंक उनके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ था जो मैंने पढ़ा या जो मैंने सुना, कि वो किसी पार्क से गुजर रहे थे जहाँ पे कुछ बच्चे पानी में पिंग पोंग बॉल होती है या कुछ ऐसे प्लास्टिक के बतख होते हैं, उन पे वो एयर गन से ना वो एम करने की कोशिश कर रहे थे, और वो किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे. स्वामी विवेकानंद बहुत देर खड़े होकर देखते रहे उन बच्चों को. उनमें से किसी बच्चे ने, अंग्रेज़ अमेरिका में थे वो, आई थिंक बहुत पहले की बात है, उन्होंने किन्हीं उन बच्चों में से किसी ने, यंग गाइज, समबडी लुक्ड अप एंड सॉ स्वामी विवेकानंद स्टैंडिंग देयर, एंड वो अपनी गेरुआ पोशाक में थे और जो भी उन्होंने पहना हुआ था. तो शायद उनको मजाक करने के लिए उन्होंने उनको बोला कि आप हमें बड़े ध्यान से देख रहे हो, आप ये कर सकते हो, आपने किया है? बोला कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया. बोले आप कर सकते हो? बोले हाँ कर सकता हूँ. बोले आप एक ही बार में आप वो निशाना लगा सकते हो? बोले हाँ लगा सकता हूँ. तो बोला आप आइए, आप ट्राई करिए. उन्होंने थोड़ा मजाकिया या सरकास्टिकली बोला जो कहानी में है. तो स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने बंदूक उठाई, जो उन्होंने ज़िंदगी में उससे पहले कभी नहीं उठाई थी. उन्होंने वो जो भी बतख था या बॉल था, जो भी था, उस पर उन्होंने निशाना साधा, एयरगन अपना ट्रिगर दबाया, और पहली बार में वो लग गया. तो वो उन बच्चों ने उनसे पूछा था कि ये आपने कैसे किया? आप तो मतलब आप से मजाक कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो कि आपने ये पहले कभी नहीं किया है आज से?
उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ही गन हाथ में फील किया है मैंने उसको, मैंने इससे पहले आज तक कभी गन पकड़ी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा किया कैसे? उन्होंने कहा कि जब मैंने वो बंदूक उठाई तो मेरे दिमाग में ये सवाल ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे मन में तो यही था कि मैं करूंगा। तो आई थिंक जो डाउट, ये एक चीज़, शायद एक और चीज़ जो सिद्धार्थ मेरे शायद पापा मुझसे कहा करते थे कि हमें जो हम मांगते हैं, बहुत दुनिया में सारे लोग भगवान हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, सब प्रे करते हैं हम, बट वो दिक्कत कहाँ पे आती है पता है? क्योंकि हम प्रे करने के बाद ना छोड़ नहीं पाते हैं, हम फिर भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली अगर हम छोड़ दें, अगर हमने प्रार्थना की है, तो आई थिंक व्हाट सरेंडर। जो आपने शुरू में बताया था ना कि फिर देन इन दैट केस लीव इट, उससे ज़्यादा ना और कुछ आप कर सकते हो, ना आपके हाथ में कुछ है, तो सरेंडर कर दो। देखो होगा तो ठीक है, जीत जाओगे, नहीं होगा तो वाइज बन जाओगे या समझदार बन जाओगे। बिल्कुल सर, आई एग्री दैट। वंडरफुल। यहाँ से यू नो इफ देयर वाज वन सॉन्ग दैट यू वांटेड टू डेडिकेट टू योरसेल्फ दैट वुड परफेक्टली आई थिंक रिफ्लेक्ट योर जर्नी, क्या होगी वो सिद्धार्थ? वो आई थिंक ये किसी ने, दिस हैज़ बीन डन बिफोर, किसी ने पूछा था सीए कोर्स में, हमारी ओरिएंटेशन होती है, तो एक गाना है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही रूप है, यही रंग है, तो दैट सॉन्ग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। can be that song I think is ये जीवन है, इस जीवन का यही है, अरे तू यही है, छुपा हुआ हुनर बाहर आ गया। यही है रंग और रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही छाओ धूप, ऐसे करके है कुछ। True, बट आई true. वो अगर आप किशोर song कुमार जी का देखो- गाया हुआ गाना है वो। हाँ, आप सॉन्ग देखो तो दुख सुख हेड टेल वो सब एक ही है, मतलब लगता है कि दर्द हो रहा है, फिर खुशी है तो फिर लगता है कि खुश है, लेकिन सेटिस्फेक्शन बीच में ही है जब न्यूट्रल है, तो हेड टेल सब जगह ये है, तो लाइफ कम्स इन स्टेजेस। Absolutely, absolutely. Amazing. Siddharth, I think thank you so much. It has been My pleasure. it has been an absolutely riveting conversation as far as I am concerned. बहुत मज़ा आया मुझे बात करने में, because I think आज पहली बार एक ऐसे इंसान के साथ साक्षात्कार हुआ या बैठा मैं, ऐसी बातें हमने करी जो शायद इससे पहले मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं करी थी इतने डिटेल में, या कभी समझने की कोशिश नहीं करी, या ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी शायद। हालांकि सीए के साथ तो ज़रूरत हर दिन पड़ती रहती है, बट यू नो आई थिंक आई रियली होप कि जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आई थिंक एटलीस्ट सम पीपल कैन टेक सम टेक अवे इन टर्म्स ऑफ यू नो द जर्नी, द हार्ड वर्क, द डिसिप्लिन दैट वी डिस्कस, द सरेंडर, यू नो द आई थिंक मैं इनफैक्ट यू नो व्हाट, कल ही मैंने शाम को एक मैंने यूट्यूब के लिए एक आई जस्ट वॉज क्रिएटिंग अ कॉन्टेंट, एक वीडियो बना रहा था मैं। आई थिंक जो हमने आज बातें करी है ना सिद्धार्थ, यकीन मानो वो आ जाएगा वीडियो मेरे ख्याल से कल परसों में, आप देखोगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा। मैंने एग्जैक्टली वही सारी बातें करी हैं जो शायद मैंने और आपने आज करी है, जहाँ हालांकि यू एंड आई नेवर स्पोक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, राइट? सो आई थिंक व्हाट इट मेक्स मी रियलाइज ओवर एंड ओवर अगेन इज मोर और लेस सबकी ज़िंदगी में ना जो पड़ाव हैं, जो स्टेजेस हैं, जिस टाइप के चैलेंजेस हैं, शायद उनका फ्लेवर, उनका रंग, उनका रूप अलग अलग हो सकता है, बट आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू मोर और लेस द सेम स्टेज as maybe guys, you know, as girls, as men and women, as you know, everyone who lives in this world. But having said that, I wish you all the very best in your journey forward as an entrepreneur. Now you've done very well for yourself as a chartered accountant. Thank you sir. And I hope we can continue to be friends, continue to keep meeting each other. हमें एक साथ में क्रिकेट खेलना है, वो अभी तक छूटा हुआ है। मैं आपके साथ खेलने, हाँ मतलब मुझे नहीं आता ज़्यादा खेलना, but I would love to. I would love to add one thing. Sure. जो भी listeners हैं या students हैं या उनके family वाले हैं, CA is not your end goal अगर किसी से नहीं हो रही है. Even if we are able to save one life after this podcast, कोई सुनता है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी अपनी पढ़ाई की जर्नी में there are suicides in the country and the world due to this pressure only. True. तो वो अगर बच जाएं, क्योंकि इट इज़ नॉट द एंड, ना ही पेरेंट्स को इतना प्रेशर क्रिएट करना चाहिए कि
रीजनेबल डिसिप्लिन इज देयर, वो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि अगर वो आपका बच्चा उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो कहीं और नहीं हो सकता. उसको ऐसा टैग, ऐसी इमेज कभी भी ना दें कि उसको सेल्फ सुसाइडल थॉट्स किसी के जीवन में आए. I think That is Siddharth, the ट्रू, एकदम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. एंड आई थिंक उसकी वजह भी वही है जो शुरू में जैसे हम बात कर रहे थे ना, कि जो हमारे हिंदुस्तान का जो सिस्टम है ना, वो पूरा जो बच्चा होने के बाद जो एक प्लेबुक रख दी जाती है आपकी जिंदगी में कि आपको यही है आपका Journey. यही आपकी जर्नी होनी है, या यही आपको पड़ाव पार करने हैं. आपने पढ़ाई करी, आप स्कूल गए, स्कूल के बाद कॉलेज गए, कॉलेज के बाद आपने कुछ डिग्री हासिल की, उसके बाद आप नौकरी पे लगे, या आपने कुछ किया, उसके बाद आपने शादी की, बच्चा पैदा किया, या यू नो हैव अ बट लाइफ फैमिली. दूसरे तरीके से आती है. एग्जैक्टली. आई थिंक उसका वो ना बड़ा सिस्टेमिक इशू है. इट इज It is a systematic issue. इट इज टू डू विद कल्चर. अब आप वही मैं कह रहा था कि अगर आप आज बाहर चले जाओ, आई डिड अ पॉडकास्ट विद अ 16-year-old गर्ल हु हैड जस्ट आई मीन जो आई थिंक वन ऑफ द टॉप रैंक्ड स्टूडेंट्स इन द स्टेट ऑफ यूपी. आई थिंक शी वाज अवॉर्डेड बाय द चीफ मिनिस्टर आल्सो. मैं उनसे बात कर रहा था जब, तो उन्होंने भी यही कहा, मतलब आई थिंक उनके स्कूल में कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं. शी हैड गॉन टू जर्मनी. ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन शी मेंशन्ड कि जर्मनी में वो एग्जाम्स का या वो पढ़ाई का. आई हैव फ्रेंड्स हु लिव इन यूरोप. एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो नेदरलैंड्स में रहता है, एम्स्टर्डम में. वहाँ पे बच्चों का आई थिंक जो स्कूल का भी सिस्टम है, जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो सिखाने के तरीके हैं, डिफरेंट है. बहुत अलग है सिद्धार्थ. सिस्टम एनी डे नीड्स अ आई चेंज. थिंक आज वो चेंजेस हो रहे हैं. Right? Right? Needs अब at a वो- very fast paced level in our Correct. country, True. where the reservation is also there in exams, specifically in competitive exams like CA, IPS, NEET or any other. वहाँ पे ये रेशियो, इफ यू स्टडी द फैक्ट्स, ज़्यादा है लोगों का टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स सुसाइड और एनी अदर वे, कि जहाँ पे सेल्फ हार्म जाता है. मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द इशू. मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. तो वो ऑप्शन कोई भी चूज़ ना करे, क्योंकि सबके पास, आई विश, आई प्रे कि सबको वो, अगर कोई है उस फेज में तो उसको वो स्ट्रेंथ मिले टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और वो जाने का रास्ता मिले. दैट इज द ओनली मोटिव. True, absolutely, Siddharth, and I really wish that comes true. Amen to that. I think बहुत ज़रूरी है ये, because जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है ना, चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं हर दिन, हर एक चीज़ में, कि किसी भी चीज़ के साथ बहुत देर तक जुड़े रह पाना अपने आप में एक एक चैलेंज बनता जा रहा है. राइट. स्पेसिफिकली आफ्टर दैट 30 सेकंड 10 सेकंड रील्स. अब जिंदगी में भी अब ना लोगों को अपनी जिंदगी भी इंस्टा जैसे ही चाहिए, कि रील्स से भरी हो. हम जहां पे भी जाएं, मतलब अब तो खैर लोग घूमने जाते हैं इसलिए ताकि वो इंस्टा पे रील्स बना सकें. बट एनी विच वे, आई थिंक दैट्स अ रियलिटी जिनसे हम अब, और शायद वो वक्त आया था और वो चला गया है. नेचर और यूनिवर्स इज ट्राइंग इट्स वेज टू सेटल दैट थिंग. बहुत सारे बदलाव आप देखोगे हो रहे हैं दुनिया में इस टाइम. Absolutely. Which are unexpected, unreal things are happening from last few years after COVID. तो भगवान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बेसिक चीज़ें सब ठीक रखनी चाहिए. True, absolutely, absolutely. On that note, Siddharth, I think thank you so much for your time. The fact that you took out time and you came all the way, and I honestly speaking, I'm going to kind of look at or watch this conversation over and over again, because I think there are lots of things that I can learn from, and I'm sure that everybody who watches this will at least be able to relate with it in some way or the other. Yes, and take something that about how life is not always linear. It comes in different shades and dimensions, and times when you feel like you're completely lost, when you want to give up, and if you have the courage to surrender, I think uske liye bhi courage chahiye, right? Life does kind of start giving you back as well. It manifolds. So I think you are a great example of that. Wish you all the very best, Siddharth. God bless you. And we will keep meeting. I think hopefully the next conversation I have with you is in your entrepreneurial journey, when we will talk about that. Right? Thank you so much, Siddharth. Thank you, sir. God bless you. My pleasure. My pleasure. Thank you.